ویلکم بیک ویورز. آپ لوگ ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں K2 میلہ وچ از آر آلموسٹ 11th اینیورسری آ رہی ہے. کچھ دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے ہماری 11th اینیورسری اینڈ دین ول بی سیلیبریٹنگ اٹ پراپرلی, بٹ دیز آر دا لیڈنگ اپ تھنگس ٹو آر اینیورسری. ہم لوگ آپس میں جو ہیں بس اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ہماری اینیورسری آ رہی ہے, ہم نے 11 سال جو ہے ٹی وی پہ مکمل کر دیے ہیں اپنے. میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ ہیں معیز الدین محمد اور میرے ساتھ ہیں عثمان امین بھی, جو سائٹ پہ دیکھ کے ہنسے جا رہے ہیں, میری اوپننگ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور بس امین چلے اگر if I've made your day تو امین yes we have, thank you very much. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عثمان امین, جیسا نور نے, thank you very much for the introduction. معیز السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے معیز, آپ ابھی جب ہنس رہے تھے آپ کس بات پہ ہنس رہے تھے؟ نور کی اوپننگ. کیا اس میں کیا کچھ تھا؟ میں نے نوٹس نہیں کیا, کیا تھا یار سارے کیوں کیا کیوں سٹائل ہے نا. مجھے جو بات مزے کی لگی نا, جیسے کہ ابھی بریک سے واپس آ رہی ہے, ویلکم بیک ویورز. ہاں ایگزیکٹلی, ایسے ہی 5 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے بریک لی ہے, بریک سے ویلکم بیک فرام دی بریک ویورز. میں بھی سوچ رہا تھا پروگرام تو ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا. ابھی تو امین بریک لی ہے نا, لاسٹ وینسڈے کو کیا تھا نا پروگرام. ایک ہفتے کی بریک, اتنی بڑی کمرشل بریک کبھی آپ نے دیکھی ہوگی ویورز. نور کو کمرشل اوپننگ بریک ایک ہفتے کی ہے نا. نور کو بندہ جی مجھے سوری, آپ نور بات کو کر بندہ انٹرو سیکھنے کے لیے انگلستان بھیج اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلی گئی ہے نا. اعلیٰ ہوسٹنگ حاصل کر, اعلیٰ ہوسٹنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. نہیں, شی از این ایکسلنٹ ہوسٹ, بٹ ہمیں بس تھوڑا مزہ آتا ہے. ہم شوق ہوں گے اس دن جب یہ 50 باتیں ایک ساتھ کرے گی. جو گھر میں چھوٹا ہوتا ہے نا, تو چھیڑتے ہیں نا, تو یہ ادھر ہماری K2 فیملی کی چھوٹی ہے تو اسے ہم اس لیے تنگ کرتے ہیں. ہم چھوٹے بیسکلی آپ ہو سب سے چھوٹے, لیکن ایکٹ نہیں کرتی, ایکٹ اس طرح کرتی جو سب سے بڑی ہو آپ. ذکی بھائی کا آڈیشن آپ نے کیا جیسے وہ جب نئے آئے تھے کہ نور میڈم پلیز مجھے چانس دے دے. نور میڈم ایکٹ اس طرح کرتی ہو آپ. نور میڈم نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بھی سیکھ رہی ہوں ابھی. اسٹائل ایسا ہے کہ وہ گھر پہ بڑی ہوں, بدماشی والا اسٹائل. اچھا گھر پہ بڑی ہے گھر پہ بڑی ہوں نا, تو تو آئی ٹریٹ ایوری بڈی لائک بیٹھ کے ذرا بات کر لیتے ہیں. کوئی انسان ہی نہیں لگتا. That's going too far. That's going too far. چلے نور کو اگر جرگہ کرنے کا موقع ملا تو وہ جرگہ پاس ہوگا کہ پھر اس جرگے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ جرگہ نہیں رہے گا, وہ کیا رہے گا؟ جھگڑا وہ سارے گھر جائیں گے, جھگڑا بنے گا. جائیں گے. یہ ساری باتیں کر لے گی, پھر آخر میں ایک بندہ بولے گا چلے جی جرگے کا آغاز کرتے ہیں. ساری باتیں کرے گی یا 2 باتیں کرے گی؟ تم غلط ہو, ٹھیک ہے, میں بس اور باتیں نہیں کرنے کو, یہ بولے گی. To be very specific, بات لمبی نہیں ہوتی مجھ سے. I cannot elongate a conversation خواہ میں. لیکن I think that is something people like as well. To the point بس کہہ دیا ہے. Who likes that? No one likes that. اچھا, anyway, moving on with the show. جس طرح آپ کو پتا ہے ناظرین کہ K2 میلہ 7 days a week چل رہا ہے K2 ٹیلی ویژن پہ. آج کل we are building up to our 11th anniversary. ویڈنسڈے کا دن خوش قسمتی سے پشاور کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں, اور یہ پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ اسلام آباد جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے ہمیں سیٹرڈے کا دن نہیں دیا. ٹھیک ہے, وہ سیٹرڈے پشاور کو شو دے دیتے اور خود چھٹی بنا ایز وہ کر دیتے نا, سیٹرڈے نائٹ ویکینڈ ہوتا ہے نا. یس, یہ بس یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس بار انہوں نے خیر اپنے پاس رکھا ہے, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. تو ہم سیٹرڈے کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو ویڈنسڈے کو ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں اینڈ وی سیلیبریٹ 11 years آف K2 ٹیلی ویژن آپ لوگوں کے ساتھ. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے بہت مزے کے فیسز, انٹرسٹنگ لوگ اور ہمارے ایسے فیسز جو کہ K2 اسکرین کی رونق تھے, وہ ہم واپس آپ لوگوں ان سے ہم نے ملوایا ہے اور ریفریش کیے ہم نے اپنی میموریز کو, اور مزیدار انسٹنٹس شیئر کیے ہیں, اور بھی بہت مزے کی باتیں ہوئی. اسی طرح آج بھی وہ بہت کمال کی پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں, لیکن وہ بریک کے بعد آئیں گی. اور آج میں تھوڑا سا آئیں گے تو چھوڑ دیا کرو سسپینس یار. میں بھی غلطی نکال سکتا نہیں ہے. پرسنالٹیز اگر ہم لوگ کہتے ہیں تو پرسنالٹیز از مونس.
मोइज इतना व्यूअर्स को भी हिंट देता और आपको मुज़क्कर नहीं भी होता। कि ब्रेक के बाद जो हमारे गेस्ट आए हैं उनके सामने उर्दू में ब्लूपर नहीं करना। अच्छा सीख रहा हूँ ना। I know my Urdu today. मैं तो आधे शो पुष्को में करूंगा उनके सामने, उर्दू मैंने भी बोलनी। हाँ ना, वो बाहर उनके साथ जरा वो करते नहीं कि मोहित हिंद को गुजार- बोलेगा उनके साथ, क्या मोहित हिंद को बोलेगा, मोइज हिंद को तो हुण बोलेगा। इनको आंधी पे ठीक बोले मैंने? खुद नहीं आती हो मुझे नहीं बोला? बोलता। अच्छा मैंने भी नहीं आती। मैं माजरत चाहता हूं, मैं जो हिंदी स्पीकिंग भाई है, अगर कोई गलती हुई हो, हम भी बात ही सीख मैंने रहे दो हैं। की, अगर इसमें कोई गलती कर दी तो बहुत अफसोस है मुझ पे, लेकिन खैर मेरा शौक बहुत है हिंदी सीखने का, लेकिन कोई टाइम किसी को टाइम ही नहीं होता कि मुझे हिंदी सिखाए यार। हमारे अगर कॉलर जो देख रहे हैं हिंदी स्पीकिंग कॉलर, जो आप प्लीज कॉल कीजिएगा और आप मुझे कोई ना कोई हिंदी में फ्रेज मुझे, मोइज को, नूर को सिखाइएगा कि हम अपनी हिंदी को भी इंप्रूव करें साथ साथ। एब्सोल्युटली। ठीक है ना? हमें कॉल करें हमारे साथ, व्हाट्सएप कॉल WhatsApp? एक्सेट्रा। व्हाट्सएप हमें साढ़े call- कॉल व्हाट्सएप निंगी। That was a good attempt. That was a good तो आप attempt, हमें but what? थ्रू आउट द शो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो पिक अप योर लैंडलाइंस, अनलॉक योर मोबाइल फोन्स, हमारा नंबर मिलाइए, हमसे गपशप लगाइए और हमें हिंदी सिखाइए। यस, उसके अलावा हमने जिस तरह हमारा होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, हमने एक रीसेंट पास्ट से बहुत पीछे नहीं गए, करीब ही 1-2 साल ही पीछे गए, 2019। यस, एक बहुत मजेदार से एक शो की हमने कुछ आपके साथ क्लिप्स, कुछ सॉन्ग्स और मजेदार चीजें शेयर करनी है। और जिस तरह आपको पता है कि लास्ट शो में हम हमारे वो वाले प्लेसेस जो कि हमें इधर ज्वाइन नहीं कर पाए फिजिकली ऑन सेट, तो उन्हें हमने वीडियो कॉल पे लिया था, बल्कि हम तो बैरूनी मुल्क भी चले गए थे। यस, 2 बरआज़मों पे, एक अफ्रीका साउथ सूडान और एक हम चले गए थे अमेरिका। यस, तो हम दोबारा जाएंगे इंटरनेशनल। यस, बिकॉज K2 के व्यूअर्स और K2 की जो फैमिली है जो आपके सामने जो स्क्रीन पे है, ये भी इंटरनेशनल है, वी स्प्रेड ऑल ओवर, अभी पाकिस्तान गया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें ज्वाइन करेंगे बाहर से एक और इस तरह एक मजे का फेस जिसे बहुत से आप में से रिकॉग्नाइज करेंगे। यार उस्मान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी सोशल मीडिया की टीम को एक्टिव देख रहा हूँ। हमारे जो K2 का हर एक पोस्ट या हर एक दूसरे पोस्ट के बाद उनकी प्रेजेंस आती है। लाइक हैट्स ऑफ टू देम कि जो हैट्स ऑफ टू देम, और वो आपसे गिला भी कर रहे थे। कैसे? यस, हमारे जो K2 के इंस्टाग्राम हैंडल कर तो कहते हैं मोइज और नूर हमें अपने पिक्चर्स नहीं सेंड करते कि हम अपलोड करें। मुझसे बहुत खुश थे, और यार मुझसे इतने खुश थे, मेरी तारीफें ही तारीफें कि आप तो ओहो हो क्या बात है आपकी। मैं खुद अपनी और यार वो मसूरी तो बनना चाह रहा, हर लेकिन एक पोस्ट में हमें टैग करते हैं ना, हम तो तस्वीर में आते। हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं, वो सेट को ब्लॉक लगी। हाँ तो क्या हम तो टैग होते हैं ना। करते हैं ना, क्यों नहीं करते? वो मैं ही सेंड की होती है इसलिए। नहीं, मैं खुद भी कर रही होती हूँ। अच्छा, मैं खुद भी कर रही होती हूँ, अगर नहीं किया तो सॉरी यार, सेंसिटिव बॉडी की नहीं, जरूरत नहीं हमारे है, दे देते हैं, पिक्चर्स भी दे जो देते हैं। सोशल मीडिया के हैंडल्स है वो कुछ देर में आपके साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत पावरफुल प्रेजेंस है, उसके साथ यूट्यूब पे, ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर पेजेस, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे शोज, उससे मजे के चंक्स और बिहाइंड द सीन्स बहुत सी चीजें अपलोड हो रही होती है। रिसेंटली हमारे इस्लामाबाद सेंटर से एक बहुत प्यारा सा एक वो इंस्टाग्राम पे शुरू हुआ है, दिस और दैट। आपने देखा? यस, देखा मैं हम वेटिंग कि वो पिशावर में कब होगा। हाँ, आने वाला है, जल्द We आने वाला है। should, yes. we इस्लामाबाद में लोग खत्म होने वाले हैं, इसलिए तकरीबन सबके साथ कर लिए। डेफिनेटली यही तो होगा। अभी पेशावर ही आएगा, तो बहुत मजे का किसी न किसी जगह पे बिठा के एक बंदे को पकड़ा होता है कि भाई अभी ये नेक्स्ट 4-5 मिनट तुम्हारे हमारे साथ है, व्यूअर्स के साथ है, और ऑप्शंस देते हैं ये या वो, ये या वो, ठीक है? क्या भाई कैसे? का फॉलो किया था आपने? हाँ देखा था। यस, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी या बाइक, मुझे गाड़ी। हाँ, लेकिन जल्दी जवाब देना होता है थोड़ा हाँ, सा। स्टफ लाइक दैट, वैसे एग्जाम्पल दे रहा अच्छा करो जरा, बड़ा मजा है। हूं। नूर, गिटार या यूकेलेली? गिटार यूकेलेली क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, वो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो छोटा होता है गिटार। हाँ, वो गिटार का बच्चा, हाँ, गिटार या गिटार का बच्चा, इस तरह गिटार। बोलो ना। फिर भी उसने बोला गिटार। गिटार या गिटार गे? गिटार गे, हाँ, गिटार गे।
वो होता है ना, वो पुष्टो में जिस तरह बोलते हाँ, हाँ। हैं। Yes. किताब हो, बचुंगड़े। किताब चा। किताब चा। हाँ, तो अच्छा, चाय या क्या? कॉफी? चाय। ये क्या सवाल हो गया? कॉफी ऑफ कोर्स। चाय। तो मेरे ऑप्शन में तो चाय है ना। तुम्हारे ऑप्शन में option कॉफी। में- अच्छा, तो और जरा चाय है पूछो ना। पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। अच्छा, ये तो हमारे पास वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इसको तो। एंटरटेन करवा रहे हैं अपने आप हाँ फोन से। हाँ हाँ, केटू मेला या खैरान? खुयारान। Got him. अच्छा, सही 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 सही। या आ गया ये आपकी call? आई डोंट नो, नहीं सॉरी। इस पे अगली बार से 10,000 रुपए तनख्वाह कट जानी चाहिए। अगली लो, बार silent है कि silent हो नहीं? गया। वाह। अच्छा, आई बिलीव प्रोड्यूसर ब्रेक का टाइम हो गया जी। गपशप तो हमारी लगती रहेगी, लेकिन सिर्फ हमने तो आपसे बातचीत नहीं करनी है, हमने मेहमानों से भी आपको मिलवाना है। तो चलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के, वापस आते हैं, फिर उनसे मिलवाते हैं आपको। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं। हम आपस में जो गपशप लगा रहे थे अबाउट हु इज द बेटर होस्ट, तो वी सॉर्ट ऑफ उसकी डिटेल्स में नहीं जाते। उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, बस यही आप प्रिज्यूम कर ले कि हमारी आपस में जो है ना एक किस्म की वो एग्रीमेंट हो गई थी कि यहाँ कुछ नहीं होने चुप कर वाला। जाओ। और हमारे पास आज जो गेस्ट हैं, हमारे उस्मान। गेस्ट की तरफ आते हैं। हमारे गेस्ट आ चुके हैं, जैसे आपको बताया था कि दे आर पर्सनालिटीज, यस, और बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है हमारे। मेरे पास वो अल्फाज बराबर नहीं हो रहे। अर्ली बात हो रही थी उर्दू की, कि उर्दू मोहित साहब बहुत थोड़ा सा एहतियात करके बोलेंगे, ठीक है। तो मैं भी अभी थोड़ा सा घबरा गया हूँ कि यार थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे गलती ना हो जाए। हमारे साथ जो सबसे पहले गेस्ट है नासिर अली सैयद साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नासिर साहब इज अ राइटर, शायर है और एक कमाल के एंकर है, और प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इन्हें मिल चुका है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इन्होंने ड्रामा सीरियल्स लिखे हैं, बहुत बुक्स लिखी है, और बेइंतहा और भी अवार्ड्स है, और भी इनसे गपशप थ्रू द शो लगती रहेगी। और आप हमारे काफी प्रोग्राम्स में आए, और जो सबसे आपका जो मेरे ज़हन मेमोरेबल प्रोग्राम आ रहा है जो K2 पे आपने किया, दैट वाज शहर सुखन विद रुबीना सिद्दीकी मैडम, जो कि कुछ अर्सा स्टार्ट पे मैंने भी प्रोड्यूस किया था, फिर उसके प्रोड्यूसर पे चेंज हो गए थे। यस। और एक प्रोग्राम में हमने आप पर जबरदस्त तनकीद की थी। वो प्रोग्राम इस हवाले से था कि ये जो उर्दू है इसको खुदारा अंग्रेजी के तड़के मत लगाओ। तो उसमें मैंने कहा था कि मैं क्या बदकिस्मती से आज हमारा यह मौजू है, और हमारे आज के शो के प्रोड्यूसर उस्मान है। अब मैं क्या करूं? तो ऐसा हुआ था, ऐसा एक शो हमने किया। क्या था वो सिचुएशन, क्या थी उस पे थोड़ी उसके सी लिए डिटेल में जाने की। डिटेल में आप ना जाएं तो बेहतर है। ठीक है। और भी अगर बातें मुझे होंगी। खतरा था कि मैं बोलता रहूंगा और उस्मान ने पैनल पे बैठ के शार्ट मेहमानों का बनाना है, मेरा नहीं बनाना है। मुझे पता था कि मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। कैसे बनाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल सर, आप तो Today's show is about you people. या, सर ये भी वो उसी हाँ मैं हाँ, समझ या। गया। और जी आजकल मेरी सब तरफ है। तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये अब वो इसको देखें, ये आजकल के जितने एंकर भी है ना, वो बाकायदा उड़ते हैं। वो बाकायदा आप देखें, हर एक वो हाथ से बात करता है। और क्या करें, हम हाथों से ज्यादा बात है। अब मुझे मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। व्यूअर्स हमारी बेइज्जती और भी होती रहेगी, अरे लेकिन नहीं, आगे अरे, चलते ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको इससे पहले कहीं आप जा रहे हैं? हमारे जो सेकंड गेस्ट है, अच्छा। बस उनकी तरफ मैंने कहा चलते हैं, फिर उनका और तारुफ बात करा के करेंगे। तो आपको मजे की बात सुनाता हूँ। जो हमारे सेकंड गेस्ट है, ही इज एज वेल अ वेरी अमेजिंग पर्सन, और उनके साथ पर्सनली मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, और प्रोफेशनली स्टार्ट में मैं बहुत उनके साथ बैठता था कि सर मुझे भी कुछ प्रोडक्शन के कुछ मुझे टिप्स वगैरह दे दिया करे, और उन्होंने बहुत मुझे अच्छी तरह गाइड किया, बल्कि अभी तक मैं उनसे हेल्प लेता रहता हूँ। इजाज नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। Sir, thank you very much for joining us. Ijaz Niazi Saab is a producer, a director, he is an actor, he is an anchor, और बेइंतहा shows, amazing awards. Musician as well. Oh yes, sorry, musician. मुझे आज पता चला कि हारमोनियम बहुत कमाल का प्ले करते हैं। Oh, yes. Yes, अब कोशिश करें हारमोनियम हम कहीं से अरेंज भी कर ले कि यहाँ पे कुछ हमें परफॉर्मेंस मिल जाए, लेकिन लेट्स सी क्या अच्छा इंशाल्लाह। गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, Yes, जबरदस्त। आवाज भी इनकी बहुत कमाल की है। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for joining us. Usman, you forgot to add कि ये ऐसी I mean he's from my area, he's from Banu.
that is something that is also very exciting for me because I mean there's somebody to look up अंग्रेजी to. के तड़के तड़के से बात निकल गई है। लड़के से बात मैं करके एक बात निकल गया है। सॉरी तो I am का तड़का लग रहा है। नासिर अली सईद साहब, मैं एक बात क्योंकि आपको बता सर, दूं अगर कि सर, मैं बहुत कम आपकी लोगों साइड पे हूं। को, बहुत कम लोगों को ये इल्म होगा कि नासिर अली सैयद अकोड़ा खटक के हैं और मैं बन्नू का हूँ। और लेकिन दोनों की मादरी जुबान पश्तो है। और लोग ये समझते हैं Yes. कि हमारी मादरी जबान या पश्तो या हिंद को है। ऐसा नहीं है। हमने अपनी एफर्ट की, हमने एक कमाल दिखाया, आप लोगों की जबान सीखी, आप कमाल दिखाइए, हमारी जबान सीखिए। वेरी वेरी नाइसली पुट। क्योंकि और अगर- नासिर साहब, एक चीज पे मैं खैर थोड़ा सा खुश हूँ कि शुक्र है ये ठीक है तड़के तो हम मारे, लेकिन बेसिकली है उर्दू में ये Yes, प्रोग्राम। yes. अगर पश्तो में होता तो नूर के साथ जब हम पश्तो में प्रोग्राम करते हैं हमें समझ नहीं आती वो हाँ, वो वहाँ एक्सेंट भी जो है बने जो तो नियाजी वहाँ साहब तो भी है तो फिर तो वाह। ये दोनों बैठे रहते जी दाद बानी दा। दादे बानी दा। or everybody else will be like so they will सिबिया हुआ है तो like यही होते हैं कि समझ नहीं आई। unfair part क्योंकि हम बानी خود ياباني او دويا دباني دي خو بيخنا بعد شكيم ده باقي كان خبرها خالي بمش بميون شكر جي اخنا بعد سراو चलते हैं हम जी। चलो इसके कहने का मकसद ये हुआ कि उस्मान अब जाए ना यार। असल में नासिर भाई, बन्नू की जबान एक ऐसी जबान है जो ना पढ़ी जा सकती है ना लिखी जा सकती है, वाह। रियली सिर्फ बोली जा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो okay. फोनेटिक्स हैं हमारी लैंग्वेज के उसकी बेसिस पर हम कोई भी जबान बोल सकते हैं, Yes. कोई भी जबान बोली जा सकती है। कमाल अन्य है। लफ्ज में कुछ लफ्ज ऐसे हैं जैसे जहां हम एक जबर से काम चलाते हैं वहां वो उसको बहुत तवील करके अलिफ से, मसलन किसी को अगर आप सर कहते हैं तो वो सार, ये यहाँ बल्कि इसमें तो बल्कि एक बहुत, अगर आप इजाजत दें तो आपको एक अदबी वो भी सुनाऊं लतीफा। Yes, sir. जी प्लीज। यस, और वो ये है कि सैयदुल रसा ने अपनी उसमें किताब में लिखा है रहमान बाबा के हवाले से। वो कहते हैं कि जी एक लड़का अपने वालिद साहब के पास गया उन्हीं अजला का, और उसमें उसने कहा वालिद साहब से कि एक बाबा का शेर है रहमान बाबा का, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसको एक मिसरा उसने पढ़ा, क्या शेर, उसने कहा चिपस्तरगु के खारी सब खूब का। तो अब खार कांटे को कहते हैं कि जिसकी आंखों में कांटे की चुभन हो वो सो नहीं सकता, चिपस्तरगु के खारी सब खूब का। तो अब वो मसला ये है कि वहां तो वो जबर को अलिफ से बदलते हैं, वो ये कहते हैं कि बाबा ने कैसे कह दिया आंखों में खार यानी खर यानी गदा, यानी वो कि- कैसे समाएगा, कैसे मुमकिन है। तो अब उसके बाप ने जो जवाब दिया वो बात है मार्वेलस। वो कहता है कि बच्चे ये तो हो नहीं सकता ना कि बाबा ने गलत कहा हो। मुमकिन है जिस जमाने में बाबा ने ये शेर कहा उस जमाने में लोगों की आंखें इतनी बड़ी हों तो उसमें गधा आ जाता हो, या फिर हो सकता है कि गधे उस जमाने में इतने छोटे हों तो आंख में आ सकते हैं। बुजुर्गों की खार सबक नजर में जिसकी नोके खार हो वो सो नहीं सकता। ताहा खान साहब ने उसका तर्जुमा किया। अच्छा, मैं एक कमाल और का। चीज नियाजी साहब जी। आपके से रिलेटेड एक मेंशन को, आपने तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स आपने भी K2 पे किए, लेकिन एक ही जहाँ पे जो ये यहाँ पे जो मेंशन करूंगा दैट इज पिशोरी कावा, और वो मैं इसलिए स्पेसिफिक वो करूँ क्योंकि उसका भी स्टार्ट में मैं प्रोड्यूसर था। एग्जैक्टली। आई हैव दैट ऑनर विद आप दोनों के साथ, मुझे ऑनर मिला सीखने का भी और काम करने का भी। बहुत अच्छा। इनफैक्ट ऐसा था कि मुझे ज़कीउर रहमान साहब ने कॉल किया कि जी अभी आ सकते हैं आप। मैंने कहा आ जाऊंगा। तो मैंने देखा रूबीना को भी मेरे साथ पिक किया, हम आए टीवी चैनल पे, तो हसन अली शाह साहब भी मौजूद थे कि जी एक छोटा सा प्रोमो या मॉक जिसको आप लोग आजकल कहते हैं वो बनाना है। तो मैंने कहा किस जबान में, कि हिंद को में। मैं पहले तो जरा सा वो हुआ कि यार हिंद को में, अब मेरी हिंद को बड़ी मिक्स्ड हिंद को है, उसमें सराइकी भी है, उसमें सिंधी भी मिक्स हो जाती है। फिर ये छज का जो है हाँ, पुली दे गाड़े गाड़े थे हाँ। मेखे बांधे तिरंगाड़ रख छोड़। तो पूरी पुली जाती उसे टोपक पे लिया पग पे मर गई मर गई। मैंने कहा कि यार अब ये अनेर भी जाएगा। बहरहाल मैंने हिम्मत की और मैं हिंद को में मॉक किया। और अभी मैं घर नहीं था पहुंचा कि जी कल से आपका प्रोग्राम है। तो हमने तकरीबन एक साल प्रोग्राम और कितना दूर तक चला वो। एक साल तक उसको चलाया। मैंने रूबीना
कुरैशी हो गई। अब एक जगह यहाँ पे रोकता हूँ उस्मान, ऐसी कुछ बातें बीच में आ जाए तो अच्छा लगता है ना, यानी कभी कभी मुंह से अगर ऐसे गलती से भी सच निकल जाए तो ठीक है। जी, बिल्कुल ओके, सर। अगर आप वो वैसे आप सच तीन पे भी एंकर डिपेंड के- करता है, कुछ सच बहुत सच होते हैं ना। बहुत तल्ख भी होते हैं, लेकिन नहीं, मैं ऐसे कहता हूँ कि नियाजी साहब के साथ और हसन अली शाह साहब के साथ वो शो, मेरे ख्याल है बनी बलोच साहब भी थे शायद, तो यही जक्की साहब ने उस शो के लिए मुझे भी बुलाया था राइट। और मुझे भी कहा था कि कल आपको आना है। तो मैंने कहा खैर जी नहीं है। मैं तो आपके लिए आधी रात को भी आ जाऊंगा, जक्की बच्चा है अपना, लेकिन ये है कि कल उन दिनों मेरा ख्याल है ये नेशनल बुक फाउंडेशन का किताब मेला चल रहा था और वो 5-6 दिन का हमारा शो होता है और पूरी दुनिया से लोग उसमें आ रहे होते हैं, तो उसमें मेरे ज़िम्मे भी कुछ ऐसे सेशन थे जो मुझे होस्ट करने थे, कुछ में मैं सदारत करनी थी। तो मैंने कहा मैं वो शो तो नहीं छोड़ उसमें कर, लेकिन कल तो हमारी फर्स्ट वो है, तो वो सारा प्लान श्लैन करके, लेकिन मैं उससे निकल गया। लेकिन लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने उसे आने, इतना खूबसूरत शो मैंने अब आज तक मिस कर रहा हूँ कि वो उस आई शो विश में कि मैं सर? उसमें होता। यही अच्छा उस्मान, इसमें एक बात मैं नासिर साहब के हवाले से करूंगा कि जो एंकरिंग है ना, मैंने इनसे सीखी। अरे नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। बिंदिया एक शो में आई और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसको इंट्रोड्यूस करूं, तो मैंने उसको कान में कहा, मैंने कहा यार बिंदिया ऐसे करते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को बुला लेता हूं स्टेज पे जो आपको इंट्रोड्यूस करे और मुझसे कई दर्जे बेहतर इंट्रोड्यूस करेगा। तो मैंने वहां अनाउंसमेंट की, अगर इफ यू रिमेंबर, नेशनल हॉल में, और नासिर साहब ने तो बिंदिया की A to Z सारी हिस्ट्री, उसका ओरिजिनल नाम सब कुछ बता के कहा कि जी आती हैं अब। राइट सर। अल्तमश गालिबन नाम था कुछ ऐसा। तो मतलब है कि दोस्ती का जहां तक ताल्लुक है, मेरी और नासिर की दोस्ती बड़े एक अजीब अंदाज में शुरू हुई। मतलब कि एक उर्दू ना हिंद को ड्रामा था जो इन्होंने लिखा और मुझे डायरेक्ट करना था, आस। सीरियल की उसमें मैंने मैक्सिमम नए लोग लिए। ये नगीना मेरी एक भी उसमें आदत आई थी, थी फर्स्ट टाइम। मैं अक्सर नए लोग लेता था। तो हम लोग का कोड़ा खटक गए, इन्होंने कहा मेरे गांव चले, वहां पे वो है, उसके मजार के क्या था, खुशहाल का मजार था या रंग महल हम गए थे? रंग महल, रंग महल हम गए थे Yes. कि वहां पे क्यों नहीं शूट कर लेते ये सीन। तब उसमें यही होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो टूर पे हैं, स्टडी टूर पे, तो वो वहां आते हैं। तो मैंने नासिर साहब से कहा कि आप अकोड़ा खटक के हैं? जो नहीं पता था उस वक्त, मुझे उस वक्त तक इल्म नहीं था। और दोस्ती की इंतहा ये है कि जब मुझे बतौर सजा कोयटा ट्रांसफर किया गया तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे छुप गए थे, एंड नासिर वॉज द ओनली मैन कि उस दिन उन्होंने शाम का डिनर हमारे एक और दोस्त से मसूद, उसके घर पे इन्होंने डिनर अरेंज किया और मैंने वहाँ फेयरवेल डिनर यहाँ से बड़ी लिया। अच्छी शाम थी वो, और बड़ी अच्छी शाम, बड़ी That's the गपशप friend रही in me. हमारी। तो ये चीजें हैं दोस्ती। दोस्ती में इन सारी चीजों में तो करनी परवाह निभाना नहीं जानते तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, मेरी नजर। अच्छा, ओके। बिल्कुल, मैं बड़ा क्लियर हूं, मेरा और नासिर का बड़े झगड़े भी हुए, Yes. लेकिन दोस्ती नहीं टूटी कहीं, नहीं सवाल नहीं पता, कहीं नहीं टूटी। काम अपनी जगह बल्कि पे मैं दोस्ती कभी कभी इनके घर जाके गाने गाता रहा, इनके बच्चों की Yes. सालगिरह पे गाने गाता रहा। Yes. मतलब वो ताल्लुक एक अपनी जगह पे था। प्रोड्यूसर और राइटर का अक्सर झगड़ा होता है, राइटर कहता है मैं सही हूँ, प्रोड्यूसर कहता है मैं सही हूँ। ओह, तो ये एक सर कोई एक झगड़ा सर। जरा बयान करे ना आपस में, कोई झगड़े कास्ट पे होते हैं। आपने जहन में कास्ट पे एक होता है। आर्टिस्ट रखा होता है, राइटर की बात कोई करता ऐसे हूं। तारीखी झगड़ा जरा हाँ, तारीखी तारीखी तो खैर नहीं हुए कोई हमारे तारीख, किसी तारीख खास तारीख के को तो जरूर किताबों में हुए। पढ़ाया जाए। नहीं हाँ? किसी खास तारीख को तो हुए, अच्छा, कोई तो कोई तारीख होगी उस दिन, उस याद खास से रखने तारीखी वाली। थे सारे। मेरा एक झगड़ा हुआ था कोयटा में, जब मैं सजा के तौर पे गया तो मुझसे कहा कि जी 24 जुलाई को अजहर लोधी और वो आ रहे हैं कंट्रोलर प्रोग्राम और प्रोमो बनाना है। किसका भाई? तो एक प्रोड्यूसर और राइटर का झगड़ा हुआ उस पे। तो उन्होंने कहा कि यार ये मोहसिन शकील ने लिखा है और सजाद गालिबन उसके प्रोड्यूसर थे,
अब सजाद करना नहीं चाह रहा और मोहसिन का वो है और कुछ करो। मैंने कहा ठीक है यार, कर लेते हैं। अब मोहसिन शकील से मेरी वाकफियत नहीं थी। सजाद चूंकि मेरा शुरू का दोस्त था, जब मैंने ज्वाइन किया था कोयटा में पीटीवी, तो बहरहाल मैंने जब स्क्रिप्ट मंगाया तो 6 स्क्रिप्ट में एक ही चीज लिखी हुई थी। मैंने कहा जी अब क्या करूं? उन्होंने कहा बस प्रोमो चाहिए, कल तक चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कुछ आर्टिस्ट लिए, सुल्तान साहब को लिया, ये जो थी सिकंदर शाहीन की बेटी, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो थी हमारे साथ। शी वॉज अ ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड एक्ट्रेस एज वेल। तो उसको लिया मैंने, और इस तरह कुछ और लोगों को। तो अब जबानी मैंने उनको डायलॉग बताया ना, मैंने कहा यार तुमने ये डायलॉग बोलना है। प्रोमो में लिया कट रहा, तुमने ये बोलना है, तुमने ये बोलना है, तुमने ये बोलना है। कर करा के मैंने अपना प्रोमो अप्रूव करवा लिया। और मुझे उन्होंने कहा कि जी 24 जुलाई को आने आ रहे, आप पहला एपिसोड करें। मैंने कहा अच्छा, पहला एपिसोड भी करूं। तो अब मैं बड़ा सोच में पड़ गया। मैंने क्या किया कि खुद ही लिखना शुरू कर दिया ना। अब जब मैंने लिखा तो जो बहन बनी थी वो बीवी बनी। प्रोमो में वो बहन थी, क्योंकि उस वक्त तो कुछ नहीं, तो मतलब अप्रूव करवाना था एक प्ले। सर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक में आप मुझे ये तरीका सिखाएं कि ये प्रोमो कैसे आपने अप्रूव कराया, क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ती है इसकी कभी कभार। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। सर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, अपनी खूबसूरत सी जो अभी बता रहे थे क्वेटा वाला सीन, और ये सुन के हम फिर अपने अगले सेगमेंट पर जाएंगे। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरजेक्ट करूंगा। जो हमारे ये ट्रांसमिशन के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। उड़ान मार्केटिंग शो के स्पॉन्सर्स है। उन्होंने अपने उसका आगाज, काम का आगाज 20 साल पहले कराची से किया था। करंटली उनके प्रोजेक्ट्स पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, मरी में उनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा यूएई, यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उनके मार्केटिंग के हवाले से काफी काम चल रहे हैं। उड़ान मार्केटिंग के जो फोकस होता है वो होता है कि मिडिल इनकम हाउसिंग जो होती है उस पे, ये मिडिल इनकम लोग जो होते हैं उनके लिए हाउसिंग, और साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी वो लोग काम करते हैं कि ऑफ कोर्स के ये लोग भी, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी आपको हर एक को पता है किस लेवल पर पहुंची हुई है। मिडिल इनकम जो घराने होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यस कि वो भी अफोर्ड कर सकें। सर नासिर साहब, आपसे जरा बात करेंगे कि आपका जो आपके करियर के आगाज के हवाले से हम ज्यादा डिटेल में अगर गए तो हम प्रॉब्ली नेक्स्ट बुक तक बैठे होंगे। इसी तरह न्याजी साहब पे भी यही अप्लाई होता है। बिल्कुल। तो हम बात करेंगे अभी स्पेसिफिकली आपका K2 के साथ जो आपका जो सफर रहा है। आपका एक प्रोग्राम तो मैंने मेंशन किया, उसके अलावा जरा हमें बताइए। अब ऐसा है कि चूंकि मुझे तो ये एक फैमिली ही लगती है, वो K2 हो कि आपका खैबर न्यूज़ हो या AVT हो। तो AVT खैबर पे भी काम मैंने किया, खैबर न्यूज़ पे भी मेरे शोज चलते रहे और K2 पे भी चलते रहे। अब तो क्या है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो एक ज़माने से है। और K2 की अलबत्ता मुझे खुशी ये हुई थी कि जब K2 जिस वक्त आया तो उस वक्त सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत से लोग इस हवाले से कि इसमें जो पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं उसको पहली दफ़ा किसी चैनल ने अहमियत दी। इस वजह से मेरे दिल के उसी ज़माने से करीब हो गया। और फिर आपको पता है कि मेरा जो बेटा है अफराज अली सैयद, टेलीविज़न का एक मारूफ नाम है, एक स्टार है, तो वो इसके आगाज़ ही में इससे जुड़ गया था और बतौर एंकर ग़ालिबन उसके शो का नाम था खैर न लायो। खैर न लायो, ये इनको का फर्स्ट शो था K2 से, इनके वो उसके एंकर थे। तो जाहिर है कि मैं तो उसी वक्त से जुड़ गया था। और वैसे भी ये सारी एक ही फैमिली है। जो हम कहते हैं फैमिली तो इधर ट्रूली सिग्निफाई होती है, और इसी तरह इजाज साहब के एंगल से भी सिग्निफाई होती है। इनके जो बेटे हैं वो हमारे इधर बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, रेहान न्याजी साहब। यस, तो ट्रूली फैमिली जो है ना वो आपको बिल्कुल है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं। जब स्टेट लाइफ में AVT खैबर के चैनल्स शुरू हुए तो मैं एक टेलीफिल्म शूट कर रहा था साउथ वजीरिस्तान में, वानक एजेंसी में। तो मेरा एक बेटा भी मेरे साथ था, बल्कि दोनों बेटे थे, रेहान भी था और जीशान, अल्लाह उसको बख्शे। तो वो साथ थे मेरे। वो एक दिन अचानक एक कॉल आई मुझे जवाद राजा साहब की, यार वो न्याजी वो जीशान को भेजे, उसको
जॉब अपॉइंट किया है हमने। मैंने कहा सर हम तो बहुत दूर पड़े हैं और पता नहीं किस दिन हम यहाँ से जाएंगे, हेलीकॉप्टर आएगा तो हमें लेके जाएंगे। बहरहाल द मोमेंट ही कम्स तो वो आ जाएगा। तो इस तरह वो उसने वहाँ पे ज्वाइन किया और इसी तरह फिर रेहान ने भी ज्वाइन किया, फरहान ने भी ज्वाइन किया, मेरे 3 बेटों ने ज्वाइन किया। खैबर को फिर उसके बाद कोई समा में चला गया, कोई कहाँ। बट रेहान को मैंने एक बात कही थी और जो मैं हमेशा कहता हूँ, as far as कामरान राजा is concerned, as far as जवाद राजा is concerned, ये अपने दोस्तों का, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। बेशक। मैं आपको क्या बताऊं कि कभी कभी मैं रेहान को डांट भी देता हूं कि यार करो, तुम क्यों खौफजदा हो कि मुझे निकाल दिया जाएगा। मैं कहा जब तक मैं जिंदा हूं मत सोचो कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और अल्लाह उनका भला करे, दोनों भाइयों का। ये आप राजा साहब से इस वक्त पक्की करवा रहे हैं? नहीं, अच्छा, मेरी ख्याल है। मेरी पक्की उस वक्त से है सर हमारी जब मैं पक्की करा जब मैं खैबर में नहीं था, कश्मीर का ज़लज़ला आया था, तो खैबर की जितनी टीम थी मैं उसको वहां एकोमोडेट करता था रिकॉर्डिंग्स के लिए, न्यूज कवरेजेस के लिए, क्योंकि वाहिद मेरे ऑफिस में ऐसी जगह थी कि जहां हम लोगों को ठहराते थे, उनको फूड भी सर्व करते थे, रोजे थे, सहरी और वो भी देते थे, अफ्तारी भी देते थे। तो उस वक्त से मेरा बहुत अच्छा एक ताल्लुक बन गया था। नहीं, वो मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और आपको पता है एक दिन वनी बलोच साहब भी का शो था, अदबी टोलना में कर रहा था, अदबी शो था विटी से मैं कर रहा था, तो मैं मतलब एक सफ़ेद लिबास में आया, सफ़ेद शलवार कमीज में आया। तो उससे पहले मैंने कहीं, मेरा ख्याल है अनीफ बलोच साहब इस वक्त सुन रहे होंगे, कहीं उससे मेरी बात हुई भी थी कि यार मैं बाकी कलर तो ठीक है, सफ़ेद मैं नहीं पहनता। तो मैंने अनीफ बलोच ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो आपको पता है बड़ा बीबा बंदा है और बरखुरदार है, बहुत काम करने वाला है। तो मैं तो, और मैंने उसके साथ बहुत काम किया है, बहुत काम किया। तो वो उसको मैंने कहा यार आप कहते होंगे कि आज मैं सफ़ेद सलवार कमीज में क्यों आया हूँ, तो ये वाकई मैंने कभी नहीं पहना। पता नहीं मुझे, आई डोंट नो कि उससे क्या वजह। मुझे बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई। मसलन वो अब मैं बताऊं, अब पूरी लिस्ट गिना सकता हूं आपको। मसलन मैंने आज तक समोसा नहीं खाया, मुझको यस नेवर इन माय लाइफ, मुझे उसकी हैत से इख्तिलाफ है। बहरहाल ऐसी बहुत सी चीजें, मुझे बहुत से ऐसे बहुत पॉपुलर सिंगर हैं जो बेसुरे हैं, तो मुझे पता है, तो मैं कह देता हूँ कि ऐसा है। तो मुझे वाइट नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा कि यार क्या करना है, तो मुझे उसने कहा तो फिर क्या हुआ है, तो मैंने कहा इसकी एक ही वजह है कि ये इतनी मोहब्बत से ये सूट मुझे तोहफतन दिया गया है कि मेरे पास सिवाय इसके कोई इशारा नहीं था कि न सिर्फ ये मैं बनाऊं बल्कि उसे पहनूं और फिर मैं एवीटी पे अपना शो भी करूं। और वो मुझे कामरान राजा साहब ने भेजा था। तो मैंने उसकी वजह से फर्स्ट टाइम, तो बहुत सी चीजें आपको फर्स्ट टाइम करनी पड़ती। मैं एक दफा अपने दोस्त के पास था, शुजात अली राई साहब के पास, तो वो उनका अपना एक स्टडी कमरा है, बड़ा खूबसूरत, कोहाट में जब थे, अब तो खैर इस्लामाबाद में है। तो वहाँ वो अपना लिखत पढ़त भी करते थे और बस सब कुछ उनका वहीं होता था। तो इत्तेफाक से मुशायरा था, लेट हो गए थे, उसने कहा नहीं आपको मेरे घर रहना है, आपको होटल वोटल सब कुछ था, लेकिन वो उठा के मुझे अपने घर ले गए। तो उस कमरे में उन्होंने मुझे ठहराया। तो उसके 2 दिन बाद पेशावर में ही, पेशावर क्लब में मेरा ये अपना एक शो था, मैं उसमें होस्ट कर रहा था। तो राइस साहब को भी हमने बुलाया हुआ था। तो मैंने कहा कि राइस साहब, मैं आज सब पब्लिक के सामने आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके घर एक रात आपके उस कमरे में रहा हूँ जहाँ आप वहीं रहते हैं, और आपको मेरी वजह से पहली दफा घर के अंदर भाभी के साथ रहना पड़ा। मैं उसके लिए अभी से माफी। शायर है ना, जहाँ सर जब पिशावरी कावा जी जी राइट, जब मैं वो प्रोड्यूस करता था, तो मैं अर्ली भी बात कर रहा था व्यूअर्स के साथ, अभी आप लोग जब नहीं आए थे शो में, कि मेरा हिंदको और एक और जुबान है फारसी, ये 2 में बहुत मेरा शौक है सीखने का। फारसी मैंने बहुत कोशिश की सीखने की, मेरे फारसी स्पीकिंग फ्रेंड्स थे, लेकिन वो बोलता था कि भाई मुझे सिखाओ, लेकिन टाइम ही नहीं होता था। इस तरह हिंदको, हमारे इधर बहुत हिंदको स्पीकिंग दोस्त है यहाँ पे, तो उनसे भी मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि भाई सबको, हर कोई अपनी भागदौड़ में होता है। तो जब मैं पेशावरी कावा करता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं उसके दौरान सीखूं। वहां से आफ्ताब लाला खड़े अभी कैमरे पे, वो भी वहां पे मौजूद थे, उमर सदीक साहब, ये भी काफी शो किया हमारे साथ, और भी थे हिंदको स्पीकिंग, हमारे काफी कैमरामैन मौजूद थे। तो मैं कोशिश करता था जब मैं कैमरामैन से बात करूं तो मैं हिंदको में करूं।
मैं टूटी फूटी होती थी, जैसी भी होती भी रहा, तो मैं कोशिश करता था, लेकिन मेरा ख्याल में 1 महीने तक मैं बोलने की कोशिश की। उसके बाद 4-5 कैमरामैन मेरे ख्याल में उनकी बैठ, क्योंकि आपस में कोई मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, फिर वो इज्तिमाई तौर पे मेरे पास आए और कहते कि सर प्लीज आपने हिंद को नहीं बोलनी। दिस एक्चुअली हैपेंड, मेरे पास प्रॉपर कहते सर आपने हिंद को नहीं बोलनी। मैंने कहा मैं सीखने की कोशिश करूं, कहते कि इस तरह मत सीखिए। कहते कि आप जो बोल रहे होते हैं बस वो हमें समझ आ रही होती है ना। असल में उसके बाद मैंने रिस्क नहीं लिया। आप कॉन्शियस हो गए थे, बेइज्जती और सर्दी आप जितना फील करेंगे ना उतना ज्यादा लगेगी। तो जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं किसी चीज के हवाले से, तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। राइट, नहीं, दैट इज वेरी गुड एडवाइस, दैट इज वेरी गुड लाइफ एडवाइस के बेइज्जती और सर्दी जितनी आप फील करते हो उतनी ज्यादा हो जाती है। ये ध्यान में रखनी चाहिए। आप सिर्फ सर्दी के बारे में सोच रहे हो तो सर्दी आपको लगनी है, सर्दी आपको लगनी है। वो अगर आपने अभी फील करे तो फिर भी नहीं। फील करते हैं तो जरा ज्यादा लगती है, ज्यादा साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट। लेकिन देसी के लिए चीज अप्लाई हो सकती है। अच्छा, मुझे एक चीज आप तीनों में से समझाए। मोइज, सॉरी, इनका एक गाना बहुत अच्छा इन्होंने गाया, कंपोज किया, बहुत खूबसूरत। तो एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया कि यार ये गाना चाहिए मुझे जी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हारा गाना अगर फिल्म में यूज कर ले तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है, एंड इफ यू वांट पेमेंट तो हम पेमेंट भी मैं करा दूंगा। इन्होंने कहा नहीं जी कर लें। मैंने प्रोड्यूसर को कह दिया कि जी ये कर लें और नंबर भेज दिया। वो बेचारा इनको फोन करता रहा, ये फोन ना उठाए, वो फोन करता रहा, वो ना उठाए। आखिर एक दिन वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पेशावर आया, गर्मियों के दिन थे मेरे साथ, तो मैं ले गया, तो लकीली मुझे मिले। मैंने कहा यार वो गाना इसका था। कहता छोड़ो यार ये तो फोन ही नहीं है। उनके साथ फिर मेरी बात हुई थी, अच्छा, लेकिन वो मुझसे भूल गया कि हमने क्या टाई अप किया। ये किस किस्म का इंसान है? तो वो गाने का क्या हुआ? सर वो प्रोड्यूसर साहब से मुझे मिलवाइए कि मैं उनके साथ मैं अपने भी दुखड़े शेयर करूं। मैं भी कॉलें करता रहता हूं, ये नहीं उठाते कभी भी, एक भी कॉल नहीं। और नंबर भी 2 है, एक भी नहीं है। एक नंबर है भाई, व्हाट्सएप है। लोगों ने तो 15-15 नंबर रखे हुए हैं। एक अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, अगर ये आपकी आदत है तो अच्छी आदत है, कोई बात नहीं। हमारे एक दोस्त थे, वो भी टेलीफोन नहीं अटेंड करते। बहुत पढ़े लिखे आदमी और बहुत, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा काम है उनका, उर्दू में, इनको में। प्रोफेसर हसाम हुर साहब, हमारे टीचर रह चुके हैं। आपके टीचर रह चुके हैं। अब देखें वो टेलीफोन नहीं अटेंड करते, और नहीं करते तो फिर चूंकि मेरे साथ तो उनके और तरह के ताल्लुकात हैं, तो मैं उनके घर में किसी और को, उसकी बेटी को, बेटे को, किसी और को भी फोन कर देता हूँ। भाभी को अल्लाह बख्शे, उनको मैं फोन करता। मैं कहता कहाँ है हसाम? कहते बैठे हुए हैं सामने। मैं फोन कर रहा हूँ, सुबह से बैठे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो मैं उनसे कहूँ उससे मेरी बात कराओ। तो वहां से कहते कि नहीं, वो मैं आपको कॉल करता हूँ अगर कल। वो कल अभी तक नहीं, वो कल दूसरे दिन तो कॉल करते हैं, कर भी लेते हैं। मैंने कहा कल क्या हुआ था? कहते मेरी छुट्टी थी। किस बात की छुट्टी थी? कहते मैंने कहा आज मेरी छुट्टी है। न वो टेलीफोन यार ये जरूरी है, आज मेरी छुट्टी है। सर ये बहुत ही जरूरी है। सर इनके सामने मुझे अकेले में बता देते, मुझे इसके सामने आपने क्यों बोला है? तुम्हारी छुट्टियां नहीं है। मैंने जो कहा है मैं अपने बच्चे को फोन दे देता हूँ कि यार खेलो आज तुम्हारे मर्जी। मेरी छुट्टी तुम्हारी कॉल आए कट करते हो, अटेंड करते हो, तुम्हारी मर्जी है। वैसे आजकल ज्यादातर यही है कि बच्चों के हाथ में होता है, ये पता नहीं होता। ये कोई अचानक फोन कर देता है कि जी आपने कॉल की। मैंने तो नहीं की थी। आप देखें तो देखूंगा, हाँ यहाँ से कॉल हुई तो है, मैंने नहीं की। बड़ा नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह है बच्चों को, एक खास उम्र के बच्चों आपको जब देते हैं तो उससे जो है ब्रेन एंजाइना का बहुत बड़ा खतरा होता है। छोटे बच्चों को जब आप देते, मतलब कि चुच्चू टीवी माएँ लगा देती है ना कि भाई मैं फारिग रहूं, ये मसरूफ है। अब वो बच्चा इस डिस्टेंस से देख रहा होता है, तो उसकी आई फिर आगे जाके ब्रेन को वो डैमेज कर देता है। और ब्लू लाइट इन इटसेल्फ इज वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली फिर आई साइट उनकी जब बड़े होते हैं तो फिर वो मेरा एक पोता कह लें, भतीजे का बेटा, उसकी आंखें ऐन गैन हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द टीवी।
یعنی وہ آپس میں بھی نہیں ملتی ہاں ہاں کہ کیا ہے اور سے کیا ملے گی، کسی اور سے کیا ملے گی. تو ایک شخص نے کہا کہ ہیما مالنی سے سنا ہاں، میری آنکھیں بیگم نے کہا آپس میں نہیں ملتی کہ تو ان سے کیا ملے گی. میری آنکھیں ہیما مالنی سے ملتی ہے، کبھی آپس میں نہیں ملتی. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیکج ہے، میں کہتا ہوں پیکج دیکھ لیتے ہیں. پیکج دیکھ لیتے ہیں. ہمارا ریسنٹلی ہماری جو 9th اینیورسری ہوئی تھی، اس پہ ہمارا بہت امیزنگ اینیورسری پروگرام تھا جس کا نام تھا سال 9. تو K2 کی 9th اینیورسری سے مزیدار سا ایک پیکج دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، میں ہوں ذکی الرحمان. اور السلام علیکم، میں ہوں مینا شمس اور آپ سب کو سال 9 یعنی K2 ٹی وی کی 9ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. شامل دعاؤں میں تو میری صبح و شاموں میں تو میں سب کچھ وار دوں تجھ پہ کہ اتنا پیار ہے تجھ سے منا لوں دل سے تجھ کو میں جو مجھ سے روٹ جائے تو تھینک یو سو مچ، تھینک یو جی. ہاں اب آپ خوش ہیں؟ میں تو کتنے زیادہ انہوں نے دل سے تالیاں بجائی ہیں. میں تو پہلے سے ہی خوش تھا، لیکن گھر سے میں بھی خوش ہوں. گھر سے میسج آیا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، تو مجھے اور بھی خوشی ہوگی کہ چلو شکر ہے. اچھا آخر میسج آ ہی گئے کہ آپ اچھے لگ رہے ہاں ہیں، ایگزیکٹلی. بس آپ کی خیر نہیں آج. اچھا اچھا اب ایسا ہے نا مینا، آپ نے میرا نام تو لیا ہی نہیں کہ آپ آئی ہو کہ نہیں. نہیں تو سب کو پتا ہے کہ آپ آئی ہوئی ہو. تیری یادوں سے باتوں سے خوابوں سے میں، تیری آہوں سے باہوں سے سانسوں سے میں دور چلا جاؤں گا. سر اور کون آیا سامنے دیکھے کمل لیڈیز زمان اینڈ صاحب کے ساتھ. جینٹلمین اور چیف گیسٹ شوکت یوسفزئی صاحب. تالیاں. السلام علیکم سر، بڑے پیارے لگ رہے ہیں سر آپ، ہمیشہ ہی لگتے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ کیسے؟ مطلب یہ ان کے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی پیارے لگ رہے ہیں، وہ ادھر ہی سے کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مینا شمس بہت اچھی لگ رہی ہے. نہیں، انہوں نے آتے ہی ہوئے مجھے تھمز اپ کر دیا تھا کہ ورلڈ. جھوٹ بول رہے سر، آپ پوچھ نے لیں. ایسا کیا تھا کچھ؟ کر- مطلب ایسے کیا تھا نا. یس یہ ہوئی نا بات. تھینک یو سو مچ. اچھا ایسا ہے کہ مطلب ان سب کا جو ہے تو ہنسنے کو دل کر رہا ہے. نہیں نہیں، ویسے تو یہ ہنس رہے ہیں لیکن مزید ہنسنے کو دل کر رہا ہے. اچھا بلا لینا. بالکل بلائے جی. آپ سب کی تالیوں میں لیجنڈز آپ کے سامنے آ رہے ہیں جی. پہلے نام میں لوں گا. اچھا چلے ٹھیک ہے، لے لے کوئی مسئلہ چلے نہیں. کس کا نام میں لوں؟ مجھے پتا ہے آپ جو ہے تو ہمارے جو بہت ہی شینو مینو کے جان ہے نا، شینو ماما کا نام جی لینا سب سے چاہتے ہیں. پہلے سید رحمان شینو. اور ان کے ساتھ ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے جو ماشاءاللہ خود بھی وہ کسی ماشاءاللہ سے دھماکے دار بندے ہیں جی، اور وہ ہے حسن علی شاہ. تسی باز نہیں آندے ہوئے اے میرے دونوں. السلام علیکم جی، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو تسی جی؟ خیریت ہے جی؟ تو پھر قانون نو سمجھوئے کہ شیرہ دے پتر تیرے کول زمینہ پیا لینا ہے، اور قسم ہے مینوں تیری زمینہ دیاں کہ میں زمینہ لے کے تینوں دے دے. دل نشین
मुझे दिल नशीं प्यार तुझे करता हूँ तेरा दम भरता हूँ प्यार तुझे करता हूँ तेरा दम भरता हूँ वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत ही मजे का एक छोटा सा पैकेज आप लोगों ने देखा और आई मीन 2019 में हम लोग काफी एक्टिव हुआ करते थे जितना मेरा ध्यान है। खुश भी बहुत ज्यादा थे। तो अभी क्या आपने कोई सिर्फ हमारे देखी में है। खुदा न खास्ता जैकी और मीना जब वो करते हैं तो आई थिंक उनकी chemistry आपस में बहुत मजे की है। एनर्जी इज Yes. अमेजिंग। बहुत ही यू नो कुछ भी नहीं चल रहा हो ना तब भी बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, आई मीन व्हाट आर दे इवन डूइंग, है ना? बिल्कुल तड़का मार दिया। मैं उस वक्त से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादातर उर्दू बोलूं लेकिन बीच में अपॉलॉजी सर आप मैंने पहले से अपोलोजाइज कर ली है। आपने तो रिटर्न में दे दे। ये तो बहुत अच्छा शो जा रहे हैं, अंग्रेजी का बीच में उर्दू भी आ जाए तो ठीक है। नो हार्म। केटू सर्कस सर नाम चेंज करके केटू सर्कस करते थे, मेला नहीं। बंद करो और आइडियाज ना दो। वी ऑलरेडी हैव इनफ खैरान। अगर इस सर्कस है तो इस रिंग में सारे एक से हैं। अच्छा सर, आपने मीडिया में आगाज जो लिया नासिर साहब, वो दैट वाज जब से स्टेट टेलीविजन वो आया पेशावर, बल्कि उससे भी पहले आप इस फील्ड में है। इसी तरह इजाज नियाजी साहब से अभी बातचीत हुई थी तो उन्होंने 1974 राइट 1974 और आप आई बिलीव उससे थोड़ा सा पहले आप आए इस फील्ड में। इस फील्ड में मतलब रेडियो था उस वक्त, तो मैं रेडियो का लाइव शो मतलब मैंने आगाज उजाला प्रोग्राम से किया। तो उस वक्त जो एक लेजेंडरी शख्सियात थी जिसमें बासित सलीम साहब और नजीर नियाजी साहब और ये इन किस्म के लोगों के साथ हमीद बानो इनके साथ मैंने आगाज किया था। मैं आगाज आप था हमारी तरह फील कर रहे होंगे वहाँ मैं ऐसे ही था जिस तरह भी हम फील कर रहे हैं आप लोगों के साथ। एक्चुअली उस्मान मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ज्वाइन किया पीटीवी को 74 में। काम तो उससे पहले तो मैं काम बहुत करता रहा, स्टेज पे करता रहा। चकलाला में जब शुरू में टीवी बनता रहा तो मेरा पहला प्रोग्राम सलाउद्दीन चौधरी ने किया था और अजहर लोधी उसके एंकर थे। लाइव था नए फनकार के नाम से। राइट। तो मुझे बेंजो बजानी थी उसमें। तो मैंने कहा कि मैंने जाना है हर सूरत। तो बहरहाल इनायत हुसैन उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, कोई 15-20 वायलिनिस्ट थोड़ी सारे, मैं देख के परेशान। बहरहाल मुझे एक वो है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कैडेट कॉलेज, यू हैव आल्सो बीन स्टूडेंट ऑफ कैडेट कॉलेज, उसने बड़ा बढ़ाया हुआ है। मतलब खौफ नाम की कोई चीज नहीं है दिमाग में ना। तो मैं बैठ गया, मैं उनको बता रहा हूँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो वो अजहर लोधी मुझे कहता है आप बेटा कहाँ से हो? मैंने कहा मैं बन्नू। आपको पता है अजहर लोधी बिलोंग्स टू बन्नू। अच्छा। हाँ, इसके फादर जो थे कस्टोडियन थे वो पुराने वक्तों में। तो हमारे मोहल्ले डॉक्टर बगदाद के मोहल्ले में रहते थे ये लोग। तो वो मैंने कहा कि जी मैं सही जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना इनको पीसेस बता रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट मी, इट रन्स इन द ब्लड। तो वो पहला प्रोग्राम मैंने किया। फिर उसके बाद मैं कॉम्पेयर बना एक म्यूजिक शो का आगोश कोहिस्तान में। और नवाब अली यूसुफजई साहब को खुदा सेहत दे, हयात है। तो वो मुझे फिर रेडियो ले आया एक दिन। क्यों लगे यार तुम इधर आओ। अब रेडियो में जो शख्सियात थी, फकीर हुसैन साहिब साहब, निशाक हुसैन साहब, मसूद जब्बार साहब, और मैं क्या बताऊं आपको कि बड़े अब तो जवार साहब, मसूद जवार के वालिद। हाँ अब तो जवार साहब, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे ये जो हमने वो थे। जब मैं गया तो मैं बड़ा घबरा रहा था। तो मुझे फकीर हुसैन साहब ने कहा यार तुम्हारी आवाज हस्की है। तो मैंने कहा ये क्वालिटी भी तो किसी किसी में होती है। जब मैंने ये कहा यूं देखने लगा। फिर मेरा तलफ़ुज़ उर्दू का उन लोगों ने संवारा
और मुझे ये पता चला कहाँ पे पास देना है, कहाँ पे बोलना है, बहुत मुश्किल काम है मतलब जो बड़ा लेकिन मुश्किल काम है। पहला सबक यही है। पहला सबक यही था। एक्सप्रेशन जो था वो सारा कंसंट्रेटेड था आपकी आवाज पे। आवाज पे, और आपको कोई देख नहीं सकता, आपकी सिर्फ Exactly. आवाज सुन के फील कर सकता है और बंदा। तो इसमें बेटा अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। नूर, आपने बात की है, मैं आपको सच कहता हूँ कि टेलीविजन की निस्बत रेडियो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल देखिए, आपने यहाँ से तो आपको आपका आधे से ज्यादा काम तो हमारे दोस्त कर रहे हैं, कैमरामैन कर रहे हैं, वो आपके आप सब कुछ को पहुंचा रहे हैं। आप आखिर रेडियो में editor, ये और फिर आखिर में अगर आप रिकॉर्डिंग है तो उसमें, लेकिन रेडियो में आपने आवाज के जरिए कानों में तस्वीरें बनानी है। कानों में सुनना नहीं है, कानों में तस्वीर बनानी है, ताकि फील हो कि मैं इस वक्त कौन हूं, मैं कोई बादशाह बोल रहा हूं, फकीर बोल रहा हूं, कौन हूं। ये आपके कान में तस्वीर बनाएंगे। आप उस जो भी तस्वीर के हो, बाद आपकी वो- कहानी किसी तक पहुंचना Yes. आपकी आवाज के थ्रू होना है। और फिर एक माइक और 10-12 आर्टिस्ट ये- होते थे। हर बंदा अपने नंबर पे आगे बढ़ता था। हर खास डिस्टेंस से बात खास करनी होती डिस्टेंस थी। पे हम बात Yes. करते थे। सर, आप तो बिहाइंड द रेडियो की कहानी सुना रहे हैं ना हमें, जो लोग बैठकर रेडियो को सुनते थे, वाह। जो एक किस्म का उस चीज को एक वो बनाया होता था। देयर वाज दिस हाँ, ओकेजन नहीं, ऑफ है, आज भी। आज लिसनिंग। भी है बहुत से लोग। आज भी अब्बा रेडियो जी, है, अब्बा जी टेलीविजन बैठ से के- उससे बहुत पॉपुलर है। 150 चैनल आ गए ना, इतने पॉपुलर नहीं है जो रेडियो Yes, रेडियो आज भी के गरीब आदमी की वो है, नहीं सर, एंटरटेनमेंट है, वो सुनता है। टेस्टफुल आदमी की है। नहीं, ये बिल्कुल, ये तो आपको बाज़ौक़ होना उसके लिए जरूरी है। हाँ, बाज़ौक़ बिल्कुल। होना कानों से तस्वीरें देखना जो है, ये बहुत मुश्किल काम है। इजाज साहब, आपका जो करियर K2 के साथ रहा है उसके बारे में जरा से डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर वापस आते हैं और गपशप लगाते हैं। बैक व्यूअर्स, हम इनसे बात कर रहे थे इनके K2 के सफर के बारे में। सॉरी, जी, एक माजरत से मैं बीच में कट लगा रहा हूँ। आप इतने गम में क्यों इंट्रो देती है? मैं तो इनके साथ गपशप लगा रही थी। मैं तो आई वाज लाइक वाओ स्टारस्ट्रक, देन आई हैव टू कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। क्या कॉफी नहीं पिया आज आपने? नहीं पीना। अच्छा, देखो ये जो भी एनर्जी निकली, ये लो, आज ये कॉफी एनर्जी नहीं है चैनल पे। मैं ये नॉर्मली कैसी रखता हूँ, मेरे पास बात खत्म है, है? सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। बट एनीवे, आप हमें भी बता रहे थे अपनी जर्नीज के बारे में, आपकी जो रेडियो के साथ जर्नी रही है और रेडियो इन इटसेल्फ जितना उसने आपको ग्रूम किया है। तो लेट्स गेट बैक टू दैट। ऐसा है कि मैं सबको यही कहता हूँ कि जिन लोगों के पीछे टेलीविजन के जितने बड़े नाम भी है, आप देखें तो सबके पीछे रेडियो कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि रेडियो से सीखना जो है वो आपको बिल्कुल शुरू में ही बताते थे। मैं खुद भी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जब भी कोई बात होती है तो उनको कहता हूँ जब तक आप मुकालमा या लफ्ज बोलना नहीं सीखेंगे, भले से आप टेलीविजन पे काम कर रहे हो। यस, फिर उसमें ये जो जैसे आप बात कर रहे थे कि जी कहाँ आपने पास देना है, कास्ट, आप देखें जरा सी बात पे आप देखें उसकी मानी बदल जाती है। ये एक छोटा सा अगर मैं एक डायलॉग इस पे बताऊं आपको, यानी हम कहें मसलन ये कहें कि ये एक मोबाइल है, ठीक है ना, फोन है, एक मोबाइल फोन, सेल फोन है, तो अगर आप कहते हैं कि ये एक मोबाइल है, एक इस हद तक कहते हैं तो ये एक मोबाइल है, सिर्फ 4 लफ्ज है। आप देखें इसको आपने जिस लफ्ज पर जोर दिया वही इसके मानी बदल जाएंगे। जब मैं कहूंगा कि ये एक मोबाइल है तो इसका मतलब वो नहीं है, वो कप है। जब मैं कहता हूं ये एक मोबाइल है, मतलब 100 नहीं है, 1000 नहीं है, एक है। जब मैं कहता हूं ये एक मोबाइल है तो फिर मैं मोबाइल पे जोर दूं, ये कोई स्त्री नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब मैं कहता हूं ये एक मोबाइल है, आप देखो जिस लफ्ज, तो इसका मतलब कि आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि आप माने कि ये मोबाइल है। नासिर साहब दूर नहीं जाए, दूर ना जाए। अभी नूर से जब उस्मान ने कहा ना कि कॉफी नहीं पी आपने, तो कहती नहीं पीना। इसका मतलब क्या है कि आप कॉफी पीना नहीं चाहते। नहीं, ये वो अच्छा, इसमें ये अब पास की बात करते हैं। ये आपने बचपन ही से सुना होगा कि क्या उसे कहते हैं कि रोको मत जाने दो, जाने दो। अब इसके मानी और है। अब आप कहते हैं कि रोको मत जाने दो, मानी और हो गई। सर ये पश्तो लफ्ज वही है,
आपका लहजा बदल देता है। सर्कल में मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पठान का जो लहजा होता है तो वो उर्दू में का की और इसका बहुत मसला होता है। ये तो कोई हाँ, this आसान normal सा process कोई करते रहते आप हैं। एक वो जरा हमें देना। ये आई थिंक ये मजे ये ये हमारा पता एक कहाँ मजा है, भी ये है। आपके यहाँ बैठा हुआ है कि यार मैं बोलूंगा तो कहीं मैं तज़किर व तानीस में गलती ना करूं। ऐसा नहीं है, What is ऐसा कुछ भी तज़किर व नहीं है। तानीस? तज़किर व तानीस मुज़क्कर मुअन्नस, अच्छा, जिसको ये काकी कह रहा है। मुज़क्कर अब और देखो, मुअन्नस बोलेगा। अब देखिए का की अलग अलग कहेंगे और मानिए, और काकी कहेंगे तो पंजाबी का लफ्ज है, वो तो लड़की को कहते हैं। सर कोई ऐसे एक रास्ता बताए ना कि हमारे भी जरा उर्दू में निखार आप मत सोचें और बोलें तो आप ठीक रहेंगे। सर वो तो मैं वो तो वैसे ही करता रहता है। फिर भी सही नहीं हो रहा। अभी आपका आवाज है। और आपने बोला कि हर एक बंदा जो स्ट्रांग होगा इस Yes. फील्ड में तो वो पीछे उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो रेडियो कर चुके हैं। रेडियो से मैंने भी रेडियो किए लेकिन स्ट्रांग तो नहीं है मेरा। नहीं, आप तो रेडियो मुरम्मत करते रहे होंगे। मुरम्मत नहीं। मैंने 2 नहीं साल अरे रेडियो आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक जा रहे हैं, आपको अपना स्टाइल है। देखो मैं तो कहता हूँ अहमद मुश्ताक का क्या अच्छा शेर है, उस्मान के नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, जबरदस्त। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे मैं वीराने में। आपको एक चीज बताऊं, मतलब ये स्पेशली मेरे साथ भी मामला था, मुज़क्कर मुअन्नस में हो जाता था। बट व्हाट आई डिड कि मैंने वहां पे लोटोपा में एक चीज सीखी। जब डे फर्स्ट पे हम गए तो हमसे कहा गया कि इनसाइड द डॉर्मेट्री यू स्पीक एनी लैंग्वेज, बट व्हेन यू आर आउट अंग्रेजी के अलावा दूसरा कोई जुमला नहीं बोलेंगे। अच्छा, मुझे आज भी याद है कि एयर कमोडोर कादिर आजकल शोर कोर्ट में रिटायर्ड है, मेरा कोर्समेट था। तो कोई बात हुई तो उससे वो कुछ मेरी तरफ आगे बढ़ा तो मैंने कहा डोंट टच माय जेब। लेकिन मैं हैरान हूं कि मेरे एक और सीनियर खड़े थे वहां, ज़ियाउर रहमान साहब के भाई खालिद, वो मेरे हाउस कैप्टन थे। तो उसने मुझे कहा कि नहीं नियाजी इधर बात सुने, डोंट टच माय जेब नहीं, डोंट टच माय पॉकेट, से तो 3-4 दफा किया। उर्दू के लिए मैंने क्या किया कि मिस्टर अहमद अगर वो जिंदा हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और अगर वफात पा चुके, वो अलीगढ़ से आए हुए थे। तो मैंने ड्रामा उनके साथ ये किया, मैंने कहा मैं जी हिंदी सीखना चाहता हूँ, ओ आ अम आहा ई ऊ, ये इस किस्म के अल्फाबेटिक। तो मुझे कहने लगे यार तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा सर अपनी उर्दू ठीक करना चाह रहा हूँ। कहते हैं तो फिर हिंदी क्यों सीखना चाह रहे हो? मैंने कहा बस ऐसी, मैं इंडिया जाना चाह रहा हूँ इसलिए ताकि मैं बोलूं। उससे कहा छोड़ो पहले तुम उर्दू सही करो। ही यूज्ड टू गिव मी 1 आवर डेली। मैं उसके घर जाता था और उनसे बात करता था। वो मुझे ये देखो ये सबसे आसान तरीका है। सर ये सिखाया उन्होंने। यस यस और फिर मैं तो ये आपके जमाने में जो लोग थे ना वो आपको सही तरीके से उन्होंने अच्छा, समझा मुझे लिया। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उस वक्त लोग पसंद करते थे कि कोई अगर उनसे सीखते हैं तो वो उनके अंदर एक जज्बा था। सर आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है। आजकल हमारे जमाने में हम ये बोले ना डोंट टच माय जेब, तो वो हमारी पूरी साल लोगों के वो सामने बल्कि वायरल कर देंगे इसको, वो वायरल कर देंगे। अच्छा, लेकिन लेकिन इसमें एक बात मजे की बताऊं, अब ये हिंदी की बात कर रहे थे, बेइज्जत करेंगे लोगों के अब सामने। ये हिंदी की कब बात किया कर रहे आपके साथ किसी ने? कोई नहीं कहता कुछ भी। आपने वो नहीं तो करता ये तो अभी है। आपको न्याजी साहब ने टिप दे दिया ना कि आप बेइज्जती को फील ना करें। तो हाँ। ये होगी। वो भी पहले से इसमें अप्लाइड है। अच्छा सर, बात हो रही रेडियो की, लेकिन आपका सफर रेडियो से पीटीवी, फिर पीटीवी से K2 के साथ जो आपका सफर चल रहा है सर, टेल अस अबाउट दैट सर। K2 पे जैसे मैंने बताया कि मेरा पहला प्रोग्राम जो था दैट वाज पिशोरी कावा। फिर वो रिश्तराबाद चौक वो भी चला। उसके अलावा कुछ ज्यादा प्रोग्राम नहीं थे K2 पे, लेकिन K2 ने मुझे इनकरेज बड़ा किया। मुझे आज भी याद है कि अब मुझे वो सन याद नहीं, जब अवार्ड शो हो रहा था नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में। जी जी बिल्कुल। तो मुझे बुलाया गया कि जी आपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपके हाथों से देना चाह रहे हैं, कामरान साहब का हुक्म है। जलील चूंकि मेरे शागिर्द भी रहे, मेरे असिस्टेंट भी रहे,
برخوردار بھی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ K2 کا ایک جو جیسے ناصر صاحب نے ایک بات بتائی, K2 نے لوگوں کو بیٹھنا سکھایا ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے. کیوں؟ ہر آدمی کو پرائم ٹائم میں اس کی زبان کا کوئی نہ کوئی چسکا ملتا رہتا ہے. ہند کو والے کو ہند کو, سرائکی والے کو سرائکی, بلکہ پشتو بھی بولی جاتی ہے, پٹواری, چترالی, اور اردو والوں کو اردو زبان مل جاتی ہے. مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹرینڈ اب جب ہم ٹی وی کا سوچتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. وہاں وہ پرسنٹیجز میں جاتے ہیں, نہیں اتنا ویک میں اتنا تو اتنا وہ اتنا. مطلب پھر ایک ایسا گروپ بھی آیا جس نے پشتون اور ہند کو اسپیکنگ کی ایک فضا کریٹ کی, جس نے تباہ کر دیا پشاور ٹیلی ویژن کو. مطلب کہ یہ سوچنا بھی میری نظر میں جرم ہے. میری جب شادی ہوئی, مائی وائف بلانگس ٹو بنو, لیکن وہ بھوپال سے آئی تھی, مدھیہ پردیش سے. میرے ماموں کی بیٹی بھی ہے اور میری کزن بھی تھی. ڈے فرسٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے کہا یار دیکھو بچوں کے سامنے ہم نے اردو میں بات کرنی ہے. پشتو وہ محلے میں سیکھ لیں گے, اسکول میں سیکھ لیں گے, لیکن گھر میں نے کہا مجھ سے پشتو میں بات نہیں کرنا, نہ میں کروں گا بچوں کے سامنے. الحمدللہ میرے بچے سب بہت اچھی اردو بولتے. اب ان کو پشتو نہیں آتی, ہو گیا. یعنی میں اپنی بیٹی کا الماس کا کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی تو کہتی ہے نہ بلے ڈالے بیا ابو. میں کہا وہ 25 کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا پینزوشت. ہاں پینزوشت روپیز. میں نے کہا بیٹا تم اردو میں ہی بتا دو, اس کو اردو سمجھ آ رہی ہے جس سے تم بات کر رہی ہو. تو اس قسم کے لطیفے ہوتے رہتے. تھوڑا سا اگر اس سے میں اپنے ایک انسیڈنٹ شیئر کر دوں. میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں پہ اب مدینہ میں جو زیارتیں وغیرہ ہوتی ہے دیکھنے جاتے ہیں, تو وہاں پہ اب ایک عربی تھا ٹیکسی والا, تو اس سے ٹوٹی پوٹی انگلش میں بات کر لی نا کہ زیارت ہاؤ مچ وغیرہ وغیرہ. تو بیٹھ کے اب ہی واز عرب, سعودی کا ہی تھا. بیٹھے تو اپنی اپنی وائف سے میں پشتو میں بات کر رہا ہوں, تو ایک دم وہ کہتا تاسو پختہ نہیں, پشتو میں بولا کہ آپ لوگ پٹھان ہیں. تو میں چاہوں گا ہاں, اور آپ کہتے نہیں میں تو ادھر کہی ہوں, کہتے میں عربی ہوں. میں نے کہا پشتو کیسے سیکھی نا؟ تو کہہ رہے تھے کہ بس یہاں پہ کافی ادھر پٹھان آتے, وہ آتے, دوست ہے, تو کہتے مجھے 5-6 زبانیں آتی ہے. بالکل. تو خیر گپ شپ لگ رہی تھی اس یاد. اب جو پنچ لائن آتی ہے اس پہ یہ انسٹنٹلی, یہ کل بھی میں کسی کو سنا رہا تھا, اس لیے فریش ہے, آپ کی بات سے ریلیٹ کرتا ہے. ہماری جو تھوڑی سی میری اسپیسیفکلی جو خامی ہے, تب اترتے وقت اب میں نے اس سے پوچھے کہ سنو شوے کتنے پیسے ہوئے نا. اب وہ آگے سے کہتا ہے کہ شپیتر. پرابلم وہاں پہ مجھے یہ آ گئی کہ اب مجھے نہیں پتا شپیتر کیا ہوتا ہے. پشاور میں ٹھیک ہے یار, ادھر کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی میں بول دیتا کہ یار نہیں پتا, بول دو مجھے میں نے کیا ہے. اب وہاں پہ اس لیے آ رہی تھی کہ ہی واز ناٹ اے پٹھان, اسے پتا تھا. تو اچھا میری وائف نے اسی وقت, میں بٹوا آتے ہیں بٹوا مجھ سے لیا, اس میں سے 60 روپیز نکال دیا, میں 60 وہ کیا کہتے ہیں ریال نکال دیا اس ٹائم پہ نا. اب مجھے یاد ہے کہ 60 ہوتے, لیکن ہاں ہمارا تھوڑا سا یہ باقی پرابلم ہے. پیسوں سے اپنے لیے خودکشی کا انتظام کیا کرنا چاہیے تھا. رائٹ, یہ بہت افسوس کی بات ہے. ابھی تو ہنس رہا ہوں میں. باقی آپ کی بات صحیح ہے. اچھا میں یہ ایک بات چیز شیئر کروں گا ناصر کے حوالے سے. میں نے بہت کم رائٹرز کو دیکھا ہے کہ جب ان کا ڈرامہ ہو یا کوئی شو ہو جس کا اسکرپٹ انہوں نے لکھا ہو, ساری ریہرسل میں موجود, ریکارڈنگ میں موجود, اوور پروٹیکٹیو بھی, اور مطلب وہاں آپ کو ایٹ دی اسپاٹ غلطی کا احساس ہو جاتا تھا, وہ کریکٹ کر دیتے تھے. بعد میں آپ ایڈیٹنگ میں سر پکڑ کے نہیں تھے بیٹھتے کہ یار یہ کون سا لفظ ناصر نے بتایا تھا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. دیر اینڈ دین ہی یوز ٹو ایگزیکٹلی, بالکل سر, یہ ان کے بارے میں کافی میں نے ایسا سنا ہے کہ اور چینجز کی ضرورت ہوتی ہے تو آن دا اسپاٹ وہ کر کے چینج کر پکڑے ان کو بولے. میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اپنے یونس قیاسی صاحب کو, ان کا میں ایک ہند کو پلے کر رہا تھا. اب وہ جس ایج گروپ میں تھے, پھر جو بیماری ان کو لاحق ہوئی وہ ہوئی, تو 13 ایپیسوڈ میں ایک ہی جملہ, ایک ہی سین وہ چل رہا ہے, وہ جی وہ برج کا ٹھیکہ جو ہے ایسے ہی ایسے 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 ایسے. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار اب اس شخص کو اگر میں کہتا ہوں تو یہ تو ناراض ہوتا ہے.
वो बड़ा पोजेसिव थे उसमें अपने अल्फाज के हवाले। राइटर्स होना चाहिए और राइटर्स को होना चाहिए, लेकिन वो आ भी नहीं थे सकते कि मुझे वहां पे स्क्रिप्ट ठीक करके दे। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से 4-5 एपिसोड की। अच्छा मेरी रिटायरमेंट नजदीक थी तो उन्होंने मुझे कहा यार जो तुम्हारे पश्तो के और उसके म्यूजिक के प्रोग्राम है ये आप तैयार कर लें और ये किसी और को हैंड ओवर कर दें। तो वो मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया। कहने का मकसद ये है कि बहुत कम राइटर ये पेन उठाते हैं कि वो अपने तलफ़ुज़ का या जो लिखा हुआ है उसकी हिफाजत करें, जो बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर डेनिस आइजक भी वो भी आते थे, रिहर्सल में बैठते थे और बाकायदा वहाँ करेक्शन करते थे। हम अगर उर्दू प्ले है कि एक चीज के साथ आपकी एफिलिएशन जारी है स्क्रीन पे तो इस वजह से ये ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं कि यार मेरी एफिलिएशन जाएगी तो ऐसा ना हो कि लोग कोई कहे कि यार ये कैसा राइटर। नहीं ये तो आपको अपने अंदर से एक आवाज आपको आती है कि आपने जिस चीज को ऑन करना है ना। यस देखो ना लोग बच्चों के साथ स्कूल क्यों जाते हैं, बस बैठ जाना, वो कहते हैं नहीं जाता हूँ, फिर वापस भी आकर ये आपका बेबी है जो आपने लिखा है, तो जाहिर है उसके लिए आपको जरा ज्यादा करना पड़ता है कि अब मैं जाऊं देखूं। एक तो ये कि वो लोग भी उनको भी फायदा हो। मैं आपको एक छोटा सा सीन न्याजी साहब, अगर आपको याद हो मेरा एक लॉन्ग प्ले चल रहा था, टेलीफिल्म थी एक ख्वाब और अतीक सिद्दीकी साहब, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, वो कर रहे थे। तो हमने वो बहुत एक मुश्किल किरदार था, बड़े लोगों को किया कि फिर हमने फरिया जबीन को बुलाया लाहौर से, याद है ना फरिया जी बड़ी अच्छी अदाकारा, हमने उनको बुलाया। तो अब उसमें एक सीन था जब रिकॉर्ड कर रही थी, हम स्टूडियो में बैठा था, तो उसने अतीक साहब से कहा, अतीक साहब ने मुझे कहा आइंदा देखो फरिया क्या कह रही है। मैं बैठा हुआ तो मैं तो हिलता नहीं था। तो फरिया ने मुझे कहा कि जी ये जो आप सीन ने, उसमें भी इत्तेफाक से अफराजी था और उस यानी कहानी वन लाइन ये थी कि वो 9 साल के बाद उसका शौहर आता है और उनका ख्याल है कि कहीं मर खप गया है, उसकी दूसरी शादी का मौका हो रहा होता है, वो आता है उस वक्त पे आ जाता है। तो वो फिर उसके बाद जब उसकी शादी तो नहीं हो, वो तो बाकी खाते और तरह हो चुके होते हैं, तो वो कहता है फिर मुझे बच्चा वापस दो। तो वो फिर जरगा पे उठते हैं और बच्चे को कहते हैं चल जी हवाले कर दें, आप जरगे का फैसला है। तो अब ये माँ जो है उसको बड़ा बना के और उसके भाई के हवाले करती है और वो उसको लेके दरवाजे तक जाता है। तो मैंने उस पर लिखा था कि पीछे वो भागती है। उसने अतीक साहब से कहा कि जी ये देखिए ये सीन तो बाकी तो ठीक है, लेकिन इसमें मुझे डायलॉग चाहिए, मैं क्या परफॉर्म करूंगी। तो अतीक साहब ने मुझे कहा कि नासिर ये क्या सूरत हाल है। तो मैंने उससे फरिया से पूछा, मैंने कहा आपको डायलॉग किस लिए चाहिए। कहती अब एक बच्चा है इतने अरसे बाद और अचानक वो 9 साल बाद एक आदमी आके उसको ले जा रहा है, भले से उसका बाप भी, उसको क्या पता कि कौन है। मैं बच्चे को हवाले कर रही हूँ और आपने लिखा कि बस उसको हवाले किया और उसके बाद जब वो लेके जाते हैं तो भागती हैं, और क्या है ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। बढ़िया अदाकारा है, लाहौर के ड्रामे करती थी। तो मैंने उससे कहा कि मेरा इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। मैंने नहीं लिखा ना डायलॉग, मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ आप अदाकार हैं, आपको चाहिए। अतीक साहब मैंने कहा इनको समझा दो, बहुत सिंपल है। मैंने कहा आपने देखा है कि कभी घरों में कभी कोई खुदा न खास्ता मैयत हो जाती है, तो जिस वक्त मैयत का जनाजा निकलता है या वो लोग उसको लेके जाते हैं तो घर की खवातीन भागती हैं दरवाजे की तरफ चीखती हुई, कोई डायलॉग नहीं बोल रही होती वो चीख, मुझे कहती बस 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 रुक जाओ बस बस बस, उसने कुछ सुने ही नहीं आगे। उसके बाद जो उसने उसकी रिकॉर्डिंग की है और जिस तरह वो भागी है और जिस तरह वो रोई है, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हालत थी उसकी। फिर वो जिसको सीरों के वो आई है और मेरे गले लगकर रोती रही मेरे कपड़े। वो कहती मैं तो बिल्कुल पागल हो गई, मुझे तो ये बताया नहीं कभी किसी ने। वाओ सर, सिंस राइटर्स की बात हो रही है, जी मैं उसके वहां मौजूद होता हूँ इसलिए। जिस तरह राइटर्स की बात हो रही है, ड्रामा की बात हो रही है, इस तरह थिएटर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। थिएटर और स्टेज जो है ये एक ऐसा शोबा है स्पेशली मीडिया में जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोविड की वजह से, क्योंकि इस टाइप की पब्लिक गैदरिंग्स नहीं हो रही, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो बहुत ज्यादा जो आर्टिस्ट है थिएटर और स्टेज के, उन्हें बहुत ज्यादा इसकी वजह से नुकसान बहुत सफर हुए हैं। तो एबीटी चांस स्पेसिफिकली K2 ने ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि कोविड के दौरान ऐसे लोगों को जो कि आर्टिस्ट है, जो कि घर पे बैठे हुए थे क्योंकि थिएटर और स्टेज वगैरह नहीं था, बंद सब कुछ, तो उन्हें प्रोग्राम्स दिए, उन्हें अपने शोज वगैरह में इनवाइट किया। इसके बाद एक छोटा सा पैकेज है, मैं कहता हूँ वो चल के देख लेते हैं। बहुत
वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देखा एक पैकेज, स्पेशली ये जो हमारे जो थिएटर स्टेज के जो एक्टर्स है, जैसा अर्ली बात हुई, बहुत इफेक्ट हुए और K2 टेलीविजन की एक काविश है कि इन्हें काम मिले और ये बिल्कुल इस तरह, क्योंकि घर पे बैठे हुए थे और सिचुएशन भी ऐसी है कि और किस्म के काम वगैरह भी, ऑफ कोर्स एक तो लोग प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते, राइट? बहुत जबरदस्त जी। बहुत खुश हुआ इस बात पे, बहुत जबरदस्त। तो स्पेशली मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि आप इसके बारे में क्या बोलना ये चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैंने जब अभी ये पैकेज देख रहा था और बात मुझे पता चला, और बाकी ये सच्ची बात है कि हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका चूल्हा जलते ही काम से है। काम ना हो तो जाहिर है कि फिर, और देखिए हर आदमी के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं होता, एक आर्टिस्ट नहीं होता, पूरा घर होता है उसके पूरा पीछे। घर होता है। और अगर ये K2 की इंतज़ामिया ने, इमरान रजत साहब ने और बाकी दोस्तों ने अगर ऐसा सोचा है तो मैं तो सलूट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नासिर साहब, मतलब कि K2 ने या AVT चैनल्स ने हाँ हाँ, सावी के जरिए भी बहुत सा हेल्प आउट किया है लोगों को, इसमें भी लोगों को मौके मिले। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि वो जो एक वजीफा कह ले या क्या अमीन एजाजिया जो था, वो जो था गवर्नमेंट ने इस स्टेज पे लाके बंद कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए इस था। स्टेज पे जरूरत थी, मतलब कि इस स्टेज पे उनको जरूरत है, मतलब एक काम तो है नहीं, अब काम बहुत जरूरी है। जो शुरू हुआ कुछ जगहों में, तो वो आर्टिस्ट पिंडी और इधर से बुला रहे हैं, पश्तो के लिए भी और उर्दू के लिए भी, और उसके लिए भी पेशावर का आर्टिस्ट फिर वही का वही रह गया। तो ये मेरी गुजारिश बहुत दुख भरा इशू है, और ऐसे आदमी जितना सोचता है उतना अफसोस होता है। मेरी बहुत ही गुजारिश है डॉक्टर शेर अली, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ कि आप चूंकि वजीर आजम के बहुत करीब हैं, तो प्लीज ये जो एजाजिया है इसको बहाल करें, और ये जो आप एहसास प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव और बड़ा खुददार होता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि वो भीख मांगे, लेकिन इस वक्त उसको जरूरत है पर्दे में जाके कोई चीज उसके हवाले की। एजाजिया के लिए अगर कुछ उनके मसाइल हैं या जो भी है, आई डोंट नो, इनके लिए हुकूमतों के लिए कोई चीज मसला नहीं होती अगर वो चाहें तो, लेकिन अगर है तो कोई ऐसा इंतजाम करे, जैसे अब AVT की इंतजामिया ने कर दिया, K2 की इंतजामिया ने कर दिया, तो उनको काम दें, कोई काम दे, उनको काम दे, बाइज्जत तरीके से वो अपना काम करें और वो उसका उनको पैसा मिले, जैसे यहाँ किया गया है। मेरा ख्याल इसी तरीके कार को फॉलो करना चाहिए। स्टेट लेवल पे अगर ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं होती तो हम प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस अगर करती भी हैं तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता जो कि अगर गवर्नमेंट करती है तब होगा। नहीं, देखो नूर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि गवर्नमेंट के पास हर किस्म की फैसिलिटी है जो किसी चैनल के पास नहीं है, पैसा भी है, सोर्सेज भी हैं कि कैसे कौन आर्टिस्ट कहाँ पे। मैं आपको ये जो जलजला आया था मुजफ्फराबाद का, उसमें एक बच्ची का इंटरव्यू मैंने किया, तो बिल्कुल सख्त सर्दी में चनारी जो जगह है वहां पे हम गए थे, तो जब मैंने देखा कि ये तो बड़ी वेल ऑफ फैमिली थी, तो उस बच्ची ने कहा कि जी मैं बर्न हॉल एबटाबाद में पढ़ती। तो खैर मैंने जब उसको इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि सर मुझे एक चीज का बहुत दुख है, लोग हमें इमदाद नहीं देते, खैरात देते हैं, और इस शदीद सर्दी में वो कपड़े लोग भिजवा रहे हैं जो बारीक नायलॉन के या उसके वो कपड़े जो हमारे किसी काम के नहीं है। हमें इमदाद चाहिए, खैरात नहीं। आई एम थैंकफुल टू एक NGO है, मुझे अब नाम याद नहीं, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने फिर क्या काम किया कि वो जाके रात को उन्होंने अपनी रैकी की और लोगों के घरों में रात को, क्योंकि दिन में लोग शर्माते थे, राइट, मतलब मैं जिस फैमिली की बात करता हूं उनका बहुत बड़ा बिजनेस है मुजफ्फराबाद में, बहुत बड़ा बेकरी का और उसका, लेकिन आफत तो किसी पर भी आ सकती है, आफत किसी पे भी आ सकती है। और वो बच्ची आज तक मैं उसको भूल नहीं सकता कि जब उसने एक जुमला कहा ना कि प्लीज लोगों से कहे कि हमारी मदद करें, हमें खैरात ना दें। अभी सॉरी नूर, आपको कट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं।
बस खत्म बात। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी एनर्जी आ गई, हाँ वर्क ऑन दैट, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ऐसे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये अच्छा सॉरी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स आप भी वेट कर रहे होंगे, हमने भी तो कुछ ज्यादा ही सस्पेंस बना लिया। अगर आपको याद है मैंने बिल्कुल स्टार्ट में शो के बोला था कि जिस तरह लास्ट वीक हमारे पास यस पूरे दुनिया से हम जो K2 के एंकर्स हैं उन्हें हमने वीडियो कॉल पे और वीडियो मैसेज पे लिया था, जो हमें फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सके। तो आज भी हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग इस तरह के हमारे एक एंकर है जो कि ही वाज द फर्स्ट हिंको एंकर ऑफ K2 टेलीविजन। अफराज अली सैयद की मैं बात कर रहा हूं। यस, अफराज अली सैयद नासिर अली सैयद साहब के बरखुरदार इनके बेटे हैं। तो वो अभी मौजूद है, करंटली ही लिव्स इन डेनवर कोलोराडो। तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया एक वीडियो मैसेज के जरिए। चलते वीडियो मैसेज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उस्मान, मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ इतना दूर बैठ के K2 की 11वीं सालगिरह जो है तो वो मना सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना देना चाहूँगा कि मैं अफराज अली सैयद, मेरा ताल्लुक जो है लकीली रहा स्क्रीन के साथ, कैमरे के साथ, रेडियो के साथ काम किया, स्टेज के ऊपर काम किया। जहाँ तक स्टेज की बात की जाए तो मैंने स्टेज पे निश्चित हाल में हम लोगों ने कई ड्रामास जो है तो रिकॉर्ड किए, जो कुछ ड्रामास जो मुझे भी याद हैं, जिनके जो बल्कि पापा आज मेरे हाल में आपके साथ मौजूद है वहाँ पे। तो पापा ने उन ड्रामों को जो है तो लिखा उन्होंने था। उसमें पहली बारिश और किसको कह रहे हो मुझे याद है कि बड़े पॉपुलर ड्रामास रहे स्टेज के हवाले से। मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरा ताल्लुक टेलीविजन के साथ रहा और मैंने फर्स्ट टाइम जो है कैमरा को जब फेस किया था, आई वाज ओनली 18 months ओल्ड। और वो मुझे लगता है कि पापा का ही कोई सॉन्ग था, उसके ऊपर कुछ परफॉर्मेंस चाहिए थी, तो मैं जो है तो उसका हिस्सा बना और वहीं से जो है तो मेरा इस टेलीविजन के सिलसिले का एक आगाज हो गया था। तो मैं पर्सनली जो है तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कमरान राजा साहब का कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे हिंदको को अपनी अहमियत मिली, पश्तो को अपनी अहमियत मिली, और वो भी 24-24 घंटे के लिए। तो लोगों की जो है जो जहाँ वो फील करते थे कि हमारे पास इतना मटेरियल नहीं, हम क्या देख रहे हैं, हमें बहुत कम टाइम मिलता था, कुछ 4 से 5 5 से 6 का एक स्लॉट मिलता था जिसके अंदर पश्तो के ड्रामास चलते थे। अब उनके पास एक मौका मिल गया, एक चैनल मिल गया जहाँ पे वो ये सब कुछ देख सकते थे। तो आई पर्सनली वुड लाइक टू से थैंक यू। और उन्होंने, मुझे लगता है कमरान साहब ने बहुत सी दुआएं पेशावर खत्ते के हवाले से अगर बात करूँ तो बहुत ली, और ज़ाहिर है कि K2 के हवाले से जब वो हर खत्ते को एक अपना अपना मौका, एक अपना अपना प्लेटफॉर्म मिलता रहा, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। एक्टर्स को बहुत ज़्यादा काम मिला, हमारे जितने आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत ज़्यादा चांस मिला सब कुछ करने के लिए। अगेन वंस अगेन थैंक यू उस्मान गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट, एंड वंस अगेन K2 को आपकी 11वीं सालगिरह जो है तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, Afraz. It was amazing having you on the show with us. And Nasir Saab, I'm sure आप बहुत proud feel कर रहे होंगे कि आपका इतना talented बेटा। बिल्कुल कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन बहरहाल इतनी दूर से आवाज सुने तो थोड़ी सी देर के लिए आपको चुप करा देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल अफराज थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे स्टेज ड्रामों का भी जिक्र किया, यस वो लिखे हुए भी मेरे थे, डायरेक्शन भी मेरी थी। उस ज़माने में हमने बहुत ड्रामे किए थे और बाहर के कुछ इदारों के लिए, NGOs के लिए किए थे, और वो मुख्तलिफ स्कूलों में भी चले, निश्तरहाल में भी चले। निश्तरहाल के साथ मेरी बहुत यादें वाबस्ते हैं, लेकिन उस्मान, नूर और मोइज़ आपसे ख़ास तौर पर शेयर करना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों को शायद इस बात का इल्म होगा कि निश्तरहाल जब बना और इसमें प्रोग्रामों का आगाज़ हुआ तो खाकसार वो पहला शख्स था जिसने यहाँ पहला शो किया। और उस पहले शो में निश्तरहाल का पहला शो मैंने किया, और उस शो में आप गुलरेज़ तबस्सुम, जबीन कज़लबाज, ये लोकल फनकार तो थे, लेकिन उसमें जो मुझे बहुत फख्र है जिस पर, वो ये है कि उसमें मेहदी हसन और फरीदा खानम को भी मैंने बुलाया था, और बहुत बड़ा शो था। फिर आबदा परवीन आई, बहुत वहाँ से हमने शो किए। बल्कि निश्तरहाल में जो मेरा सबसे बड़ा एजाज़ है वो ये है कि मैंने दिलीप कुमार का शो एजाज वहाँ होस्ट किया, मैं उसका होस्ट रहा हूँ। बाकियों का मुझे पता हो ना हो, इनका जरूर पता था। I knew about this one. आपने अपने पहले शो का जिक्र किया, मेरा भी पहले शो का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैं बिल्कुल एनर्जी में था, स्टेज पे जैसे ही चढ़ा 2 बातें की एंड देन आई सेड यार कट कर दो। और मेरे सामने पहली मर्तबा तकरीबन कितना क्राउड था,
एक 200-250 क्राउड बैठा, मैंने जैसे स्टेज शो में देखा तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मोइज थैंक यू कि आपने ये कहा कि कट करो, अगर आप कहते कट रही ये लोग क्या करते हैं? नहीं, दूसरी बात मेरी यही थी कि कट रहा हूं यो में सही थी, तो बहुत ही मुश्किल था। आई डोंट नो क्या चाहिए होता है स्टेज पे परफॉर्म करना या उधर बोलना। पहले शो की, सॉरी मैं भी थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर दूं, स्टेज की बात हो रही थी, मेरे इत्तेफाकन मेरा स्टार्ट ही थिएटर से ही हुआ था। अच्छा, ये और जबरदस्त होता है। वो बड़े मेरी कोइंसिडेंस था, मैं एक्चुअली एक दोस्त से मिलने गया एक जगह पे, एनसीए PNCA राइट, वहां पे मिलने गया, तो वहां पे मैं उससे बात की तो उधर कुछ ऑडिशंस चल रहे थे ना, उसने कहा ट्राई करते हो, मैंने यार कर लेते, शो लगाते हैं ना, लेट्स हैव फन। ऑडिशन दिया, एक इंग्लिश का प्ले था, उसमें पुलिस ऑफिसर का एक रोल था, तो लाइंस वगैरह दी, थोड़ी सी बोली, दे दिया ऑडिशन। तो शाम को कॉल आ गई कि भाई यू सिलेक्टेड ना, तो मैं मैं तो शो में दिया ना, मैंने कहा एक दिन जाके देखता हूँ यार क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं था, अपनी बजाय उनके टैलेंट पे शक हुआ। तो ये पहले दिन गया, मैंने कहा आज तो मजा आया, कल दोबारा देखता हूँ, दोबारा गया, तीसरे दिन मैंने कहा था, मैंने बोल देता हूँ कि भाई मैं और नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ ट्राई कर, तीसरे दिन इतना मजा आ गया कि अभी तक मैं इसी फील्ड में हूँ। और आपको एक टिप दूं इस हवाले से, और कोई डरा नहीं रहा, कि अगर आप ये होस्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम मेजबान होते हैं, किसी शो के कंपेयर होते हैं, तो उसके लिए मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं कि अगर आपके ज़हन पे इसका बोझ नहीं है और आपको नहीं पता कि कंपेयरिंग क्या होती है, ये इंतहाई आसान काम है। बस जिस दिन आपको ये समझ आ गई कि ये कंपेयरिंग क्या है, फिर बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल काम है, मैं अब भी बहुत डीप अल्फाज है अगर चर्चा जाए। अब छोटी चीजों पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं और आपसे जो पूरी वो होती है, कंपेयरिंग होती है, वो रह जाती है। ये वो मैं कैसे नजर आ रही हूँ, अगर मैं ये बात ऐसे करती हूँ, नहीं, बस फिर वहां पर अटक जाते हैं। अफराज अभी बात कर रहा था, अफराज को एक मेगा शो करना था अयूबिया में स्टेज पर, और जिसमें ये इब्रार और हुमेरा अरशद और फाखर और कौन कौन लोग आए हुए थे, कल्चर डिपार्टमेंट के लिए उनका था। तो अब उसने मुझे कहा था कि, मैंने कहा बेटे ये इतने बहुत बड़े स्टार आ रहे हैं, तो क्या पोजीशन है, एनर्जी लेवल क्या है? कहते जी मैंने अपना काम करना है, उनके साथ मेरा क्या है। तो यार उसने किया, और ऐसा ही मैं बैठा हुआ था ऑडियंस में, और मैं खुद प्राउड तो खैर फील करता ही आदमी है, लेकिन मैं हैरान भी हो रहा था कि उसने वो शो किया, और ऐसा शो किया कि रफी अपने तारक साहब एक दिन यू के साथ नाम ले, वड़ाइच साहब, ये सुहेल वड़ाइच साहब उस दिन कहीं अयूबिया में थे, और वो आए बैक स्टेज, तो उस वक्त मैं इत्तेफाकन ऊपर आ गया, तो वो अंदर आए, उनसे मेरी खैर हेलो हाय तो थी, तो मुझे कहने लगे कि यार वो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैं उस एंकर को देख रहा था जो होस्ट कर रहा है प्रोग्राम को, मैंने कहा बैक स्टेज जाके उसको मिलता हूँ। फिर मैंने उसे बताया कि जी मेरा बेटा, अच्छा वो आया, उसने उसके साथ तस्वीरें बनाई। तो मैंने कहा अब ये क्या, उसने पहले से मैंने कह दिया था, मैं उसको कुछ टिप देना चाह रहा था, उसने मुझे कहा नहीं जी वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, तो करता रहा। सर बातें बहुत मजे की हो रही है, आपसे भी इजाज साहब, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हमेशा की तरह जब भी आपसे मुलाकात होती है आइदर वन की, तो बहुत कुछ बंदे को वो होता है कि अच्छा ये बात याद रखनी है, ये काम की बात है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया है, 2 घंटे भी जब आप साथ होते तो कम पड़ जाते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं चलता। तो व्यूअर्स हम आपसे इजाजत चाहेंगे, और मैं इजाज नियाजी साहब का, आपका और नासिर हुसैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, हमें इतने आपने रिस्पेक्ट दी, इट वाज अमेजिंग। बड़े अरसे बाद मिल और रहा है आप लोग जो K2 के साथ सफर इंशाल्लाह चलता रहेगा। जी बिल्कुल। बच्चे, मैंने आपको कहा ना कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे, तो जब नए लोग, फिर बल्कि हमें ये एक एहसास होने लगता है कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर। व्यूअर्स आप लोगों को अभी आवाज आ ही रही होगी बिलाल लाशारी साहब की, फ्रॉम द अमेजिंग नोमान लाशारी, सॉरी मिक्स कर गया था, थैंक यू, नोमान लाशारी साहब की, जो हमारे बहुत अमेजिंग सिंगर इस्लामाबाद से। ये जो 9:30 शो की पहले आपको झलकियां दिखाई, इसी शो में इनकी एक बहुत मजे की परफॉर्मेंस थी। हम आपसे इजाजत मांगेंगे और नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और आप लोग ये सॉन्ग एंजॉय करें।